Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another podcast of Wali podcast. Basically, I'm resuming this after more than a year now, and this is the fourth episode. And I'm very delighted to announce that we have a very special guest today. Someone who has inspired me in the comedy industry in the UK, as an organizer, as a comedian himself, as a host, as a philanthropist. I mean, जैसे कैमरा उधर जाएगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार कि कौन कौन सा बंदा मैं ले आया हूँ. And I'm very delighted to have been on a comedy tour with this guy because I've learned so much from him. He is kind of a veteran in the UK comedy industry, especially the Desi comedy, both English and Urdu. He has won many awards. He has his own company. He runs a group of comedians. He has made me realize, he has taught me about how the industry works in the UK if you are from Pakistan or India and how to thrive in here as a comedian. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाबे सलमान मलिक का. Thank you bro, thank you for having me. सलमान, मैं आपको सलमान कह सकता हूँ. सलमान भाई क्यों? नहीं सलमान ठीक है. सलमान because 19-20 का फर्क है. 19-20 का फर्क है, वो हम बाद में आएंगे. लेकिन थोड़ा सा प्रील्यूड टू दिस कन्वर्सेशन, मुझे थोड़ा सा कसीदा बांधने दें आपके बारे में. नहीं यार, you know वो इतना लंबा इंट्रोडक्शन कभी मेरे घर वालों ने मेरा नहीं दिया या मैंने खुद अपना नहीं दिया. नहीं, वो you deserve it. You deserve it. I'll come back to what was my first impression of you when we talked on the phone first time. पिछले साल जब मैं मैनचेस्टर में था and you were generous and kind enough to call me. तब मुझे नहीं पता था कि यार ये इतना बड़ा मुझे कॉल कर रहा है, इतना बड़ा बंदा. लेकिन वो बड़ा बंदा मेरी पॉडकास्ट पे है, तो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड. एक सेकंड सर ठहर जाए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा. ये इसके बाद इट इज ऑल अबाउट यू. ठीक है, तो I can't believe that इतना बड़ा बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है and he's such a humble person, such a down to earth person. इनके साथ बैठ के लगता ही नहीं है कि यार ये 20 साल से UK में कॉमेडी कर रहे हैं. And when we go in further detail, I'm gonna share with you some details about how he started comedy, how he sustained it, how he opted it as a possible profession, what talents he had back in the days, like when I was in first year of medical school and he was doing those highly advanced beyond the era kind of stuff on the videos. जब मेरे पास फोन भी नहीं होता था, ये बंदा तब YouTube के ऊपर प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ 3 कैमरा एंगल्स के साथ वीडियोस बना रहा होता था और एक्टिंग कर रहा था. उसमें इम्प्रॉम्प्चू लगे हुए हैं जनाब. He made connections and we're going to talk about his journey from Pakistan, Bahrain and then UK. So Salman Malik, since I can't believe you are here, can you please make me believe by just pinching me, or you can just do a very Salman Malik thing that anybody can understand कि हाँ सलमान, ये सलमान है. I'll just pinch you. यार सवेरे यार क्रिएटिविटी नहीं चल रही है. अभी चाय आपने पिया है, थोड़े होश आइए. So I'll just be happy. अच्छा सलमान, thank you for coming. I'll just go through the structure. मैंने नोट्स बनाए हुए हैं. सारी रात आपके साथ मिलके बैठ के लग रहा है मैं LinkedIn द इंटरव्यू करना है. नहीं, पता क्या, इतना इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट था for a person of your stature. It's important because I want to let people know a very intimate side of you. Sure. Like not very intimate but socially intimate. Fair enough. ठीक है, as a person, because you are I've seen you perform so much. Alhamdulillah. Mashallah, and you are always on the go. You are a very active person, sometimes hyperactive as well. And that inspires me in how you're managing stuff. But we will start with how how were you born? तो नहीं, but वो भी एक interesting. वो भी एक हादसा. lot of people actually don't know where I was born. So let's start from there. Where were you born? और वहां से फिर यहाँ तक का सफर कैसा रहा? So unofficially and actually really, I was actually born in Multan. What? Yeah, I was born in the city of Multan, city of Aulia, in Nishtar Hospital, Multan. I was born there. ना करो. हाँ जी. आपको पता है कि निश्तर हॉस्पिटल है वहाँ पे?
ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज है. Yeah, so there you go. So we didn't know that. We didn't discuss this before. So my mom, मेरी जो अम्मी है, वो पीछे से सियालकोट से हैं, but they have family in बूरेवाला, near मुल्तान. तो वो होता है ना कि जब आपका पहला बच्चा हो रहा होता है. So back in the 80s, काफी trendy था ये. So yeah, I was born in Multan in Nishta Hospital, but my passport says otherwise. Did you keep it a secret for all these years? नहीं पता नहीं हमेशा से था. I think वो मेरा दोबारा एक दफा पाकिस्तान में पासपोर्ट रिन्यू किया तो उन्हें पता नहीं सियालकोट पास था. But I was actually born in Multan. तो ये जितना आप सियालकोट जाते भी तो हैं, आप मुल्तान तो जाते हैं. Obviously my father's side of the family is from Sialkot. Okay. तो लेकिन मेरा जो नानका आप कह सकते हैं kind of is from Multan. So are you like familiar with Saraiki language or something? So when I was 9 or 10 years old, I spent 1 year in Multan and 1 year in Sialkot. So when Multan I went to a school in Gulgasht colony in Multan and I just remember basic da rupiya ye wo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da. Sir मेरी अम्मी भी सराइकी है. Mashallah. Yeah, so मेरी अम्मी actually she doesn't speak Saraiki, but yeah, I stayed in Multan and I had a good time. First time हमने वहाँ पे कुत्ता पाला था. वहाँ की तो गर्मी का तो बड़ा बुरा हाल है मुल्तान का. तो how did you cope with that? I don't know, bro. We were kids. घर पे एसी भी होता था. Oh, मैं ये पूछने लगा था कि I was like elite class मुल्तानी. I won't call elite class, but जिस घर में हम रहते थे वो काफी क्लासी था. तो अच्छा. So how did you come to UK? I think it's वही घिसी पिटी कहानी. So obviously my family, my parents, my father is based in Bahrain. तो बहरीन अगर इसको नहीं पता हो, कोई पूछता है सऊदीया दे नाल है, ये दुबई के साथ है. Bahrain is a small tiny island, is an independent country. और मेरे फादर वहाँ पे 70s से बेस्ड हैं. तो जब मैंने आंख खोली दुनिया देखी तो मैं बहरीन में ही था. Although I was born in Pakistan. तो मेरी स्कूलिंग वगैरह बहरीन में ज़्यादातर हुई, with odd couple of years जब मैंने पाकिस्तान में गुजारे. तो आई थिंक मैंने मैट्रिक किया. मैट्रिक के बाद आई डिड माई A-levels. तो उसके बाद पेरेंट्स को लगा कि नहीं, दिस गाय नीड्स टू लीव. Why? I don't know, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि maybe for better education opportunities और आला तालीम हासिल करने आला तालीम जी. और लग रहा था कि पता नहीं होते ऐसा कुछ बनना नहीं होता. तो so I applied for American visa first. US का वीजा हमने अप्लाई किया. Obviously. जी. The first priority of everyone. उन्होंने मेरे नंबर, मेरी शक्ल देख के रिजेक्ट कर दिया. फिर हमने UK का अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट कर दिया. This is not even a joke. वो भी रिजेक्ट कर दिया. फिर मैं UK इंग्लिश पढ़ने आया. तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आप इंग्लिश के कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है. तो फिर मैं इंग्लिश पढ़ने आया. एज अ स्टूडेंट आए? जी. बाकी चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ मिलके ना, मैं वो चाइनीज होता है ना, वो आते इंग्लिश पढ़ने इधर आते हैं. सो आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश. तभी आप सोच रहे होंगे. एंड देन यू बिकेम इंग्लिश. ओह माय गॉड. स्टडी इंग्लिश से बिकेम इंग्लिश तक का सफर के अंदर जितनी रुकावटें थी उनके बारे में कुछ बताइए. I think just like anything else, times are tough. So I would say कि I've been very lucky. Allah has been kind. वो होता है ना कि आपको लगता है कि यार मैं शायद इस काबिल नहीं था जो ऊपर वाले ने हमें दिया. So I always think this way कि सियालकोट से, बहरीन से एक लड़का और I never had कुछ होता है ना. I'm sure आपका कोई ambition था when you were little कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा? मेरा ambition ये था कि मैंने बड़ा होना. बस मैं बड़ा हो जाऊंगी इस तरह. यार बड़ी मेरा I never been ambitious कि कोई I never had goals in life, just leading it on. और so I'm glad कि I came here and I was able to. वो होता है ना कि जब आप पेरेंट्स के साथ होते हैं तो 100 आप पे restrictions होती हैं, 100 मस्त चीज़ें होती हैं. तो मुझे लगा कि when I came to this country, especially by myself, I was able to be myself. I was able to explore things. I was able to meet people, and that opened doors. And I kind of discovered कि यार अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. अच्छा मैं फनी भी हूँ शायद. लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं. So I explored that part of me over here in this country. Speaking of ambition, जैसे आपने मुझे पूछा कि आपका ambition क्या था, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे ना there was always a predisposition in my childhood. School के दौरान I was always active in theatre and acting and dancing and stuff and writing comedy and stuff. तो obviously I don't think कि आपका ये चीज़ें नहीं होंगी. तो would you like you were I was in Bahrain. वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्कूल ही था. तो thank God हमने उर्दू सीखी वहाँ पे. हमारे स्कूल वगैरह में कोई डिबेटिंग, कोई इस तरह की it didn't even exist. बड़ी मुश्किल से स्पोर्ट्स डे मिल जाता था. Anybody watching from Bahrain, I went to Pakistan Urdu school if that helps.
तो कोई ऐसा नहीं था, घर पे माहौल इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, बट देयर वाज नो लाइक क्रिकेट खेलने के लिए भी इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती थी, थैंक यू टू माय डैडी, यू नो। तो कोई हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग, कोई किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया। डीप डाउन आई हैड दिस लव फॉर बॉलीवुड एंड आई लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स, और पाकिस्तान की फिल्में या ड्रामे हम देख लिया करते थे, वीसीआर, हम वीसीआर के ज़माने से ना, आप वीसीआर देखे? मैंने देखा है, जब वो एक्सटिंक्ट हो रहा था ना, अच्छा, तब मैं पैदा हो रहा था। तो वो सब था। So people who know me from Bahrain till the age of 19 and they see me now, or they've seen me over the last 15 years, they're like, especially people who went to my school, they're like, ye is can I say this? Oh yes, I mean it's your podcast. They're like, yaar ye chutia abhi, like they just can't believe it if it's the same person. So maine until the age of 19 and 20, none of what I do right now was visible, ya maine kabhi koi aisi cheez ki ho. Acha. Ji. So you're saying that your shift to comedy as a profession was very late in your life? Yeah, very late. I think more than comedy, it's more because I was actually, I can say I was one of the pioneers on YouTube to do comedy, in the Desi sector. Back in मैंने पहला YouTube channel 2006 में बनाया था. Let's talk about YouTube, man, because I was going to come on that. क्या मेरे दुख YouTube and you, कल रात को नाजरीन हमने सलमान भाई स्टेड ओवर माय प्लेस, एंड रात को हमने 2 घंटे इनकी 14 साल पुरानी वीडियोस देखी जी। और वो 14 साल पुरानी वीडियोस ऐसी हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उस दौर में जब मेरे पास फोन भी नहीं होता था, दिस गाय वाज एक्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ही हैड अ टीम ऑफ फ्रेंड्स, मिमिक्रीज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और गोरों के साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं सड़कों पे। So tell me about that, man. यार मतलब अभी हम लोगों को बोलते हैं कि ना आजकल ना बड़ा इजी है, लोग ना लंदन की रोडों पे जाते हैं ना, तो लोगों से फनी इंटरव्यूज करते हैं और टिकटॉक पे डालते हैं, and then they get 500,000 views and they feel so special about it. Bro, we've been there, done that. तो लेकिन अब वो एज है तो it doesn't happen. I think वो ये होता है कि जब आप when you're in early 20s or you're in your teens, you have the energy. तो obviously I was here, I was young, I was with my friends. तो we just wanted to do some crazy things. So आप सोचो कि अब the things I do now, तो जवानी मेरे थे अन्नी सी कुछ लोग मैंने अन्नी दा कहते तो I just wanted to do crazy things. It's a shame, अगर somebody asked me कि आपकी life में कोई regret, it's a shame that I didn't continue with my YouTube. I just somehow got put off by it, things. Maybe you overdid it. Maybe I overdid it, and then things in my things in my private life changed. I had a family. So but it was fun when it lasted, and we got to do some crazy things. तो वो जो आजकल वो जो होता है ना कि जैसे कि फैशन दोबारा रिपीट होता है, ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, जैसे प्रैंक्स रिपीट होते हैं, तो अब वही चीजें दोबारा आ रही हैं, and I just look at it, I said कुछ नया तो करो यार. And I understand what you're saying, because you're like, I have done all these things and you've tried everything, you've tasted every format of comedy basically. You've done acting, you've done stand-up, you've done funny dancing, you have done street interviews, funny interviews. उसके अलावा you've done everything. So I mean आपको एक बात बताना चाहूँ कि the trends की बात है, 14 साल पहले one of my most popular videos on YouTube as well is touching 1 million now after so many years. Tell me about that. तो वो था कि this is I'm going to break down the Jay Sean interview. Oh yes, yes, that's very popular. I'm not sure if Jay Sean knows this, but this interview is big part of my life. ठीक है. 2007 में I was there was a website called videowala.com. अब तो खत्म हो गई होगी. तो I was doing some interviews. So we created this character called Mr. Singh. I was Singh, and we had this another female colleague of mine. Her name was Nisha. She was Miss Bling. तो show का नाम था Sing and Bling. So I did this deep Punjabi accent, and I used to go around streets of London, speak to people in Punjabi. तो हमें पता चला कि एशियन म्यूजिक अवार्ड्स हो रहे हैं, तो हम वहाँ चले गए. तो जय शोन सबने सुना हुआ था, जय शोन के गाने बड़े पॉपुलर थे, जगी डी, जय शोन, ये सारे स्टार मैंने I've heard of them but I've never met them. तो जय शोन उन दिनों में अमेरिका भी जा रहा था, और उनका जो गाना है राइड इट, जो कि अभी रिसेंटली फिर हिट हुआ है, तो वो बड़ा चल रहा था, राइड इट. तो I was at this party and all of a sudden the lady said to me, who was our producer, कि here's Jay Sean, you have 3 minutes with him. तो and then the rest is history. मुझे पता नहीं क्या हुआ. I was in character obviously,
and I looked at him and I was like, hello, I have family in India, you know, they're always singing your song, Ride It, what is it? Now I thought he will just do what he does, but what he did was history. Ye banda aage se na, he mocked the accent back, he spoke to us in Punjabi, और उस बंदे का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है, लाइक दिस गाय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. और वो इंटरव्यू इट इंस्टेंटली वेंट वायरल. आई स्टार्ट गेटिंग स्पॉटेड ऑन स्ट्रीट्स. लोग मुझे रोक रोक के कहते हैं, ओ तू वही है जो जयशुन. इनके उस इंटरव्यू को 15 साल हो चुके हैं. आई रिमेंबर कि ही स्टार्टेड इन इंग्लिश एंड देन ही शिफ्टेड टू पंजाबी because you were in Punjabi, so he's like, okay, let's do this. Or 1 year later, Jay Sean went to America, so he signed with Cash Money, or his song Down was #1 on Billboard charts. तो उसकी वजह से people started googling this guy and then ending up on my video. क्योंकि he America में American people thought he was Hispanic. गंजा सा था, they thought he was Latino. बा पंजाबी मुंडा आते हैं हंसलों दा. अच्छा. So and one of the funny thing is I met his mom about 3-4 years ago at an event. They're into cosmetics or you know business. So and I reminded her कि you know मैं वही हूँ. And I've got her on WhatsApp now. Yeah. That's amazing. And I would like you to throw some light on the kind of hairstyle you had back in the days. What the hell was that? मैं इस पे क्लिप डालने लगा हूँ इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर. मैंने जब वो देखा, क्या मतलब स्पाइक्स का जमाना था. मैं तो तब लिटरली उस जमाने में ना यार, हाँ उस जमाने में वो होता था प्रॉपर ऐसे आपकी स्पाइकी हेयर होते थे, और मेरी ना ऐसे पतली शैतानी दाढ़ी होती थी, यू नो. ओह माय गॉड, इस तरह की दाढ़ी वाले बच्चों के साथ मेरी अम्मी मुझे बैठने नहीं देती थी. आई एम सो हैप्पी कि गाइस मैं इनको अब मिल रहा हूँ जब ये थोड़े से सोबर लग रहे हैं. यू नो it was the trend, you know. अगर आप अपने फेवरेट बॉलीवुड या हॉलीवुड के आर्टिस्ट देख लो 90s में, तो आई थिंक उस जमाने में यू नो जो यही दिखता था और यही बिकता था. सो it's part of me. I'm not ashamed of it, but yeah, it's a bit cringy, and if I was to show it to my kids, they'll be like, you know, yeah, they'll be like, "Kede kam pe gaye pe usada." Good one. Tell me something about the comedy industry in the UK. Yeah. Like comedy industry, acting industry, because you've been affiliated with everything, almost everything so far. You've been here for 20 years, is it? Nearly 20 years. अगले साल. So अगले साल 20 years. Good. So you're the right person to ask this. Just say, for example, if I have come from Pakistan recently 3 years ago, and when I was leaving Pakistan, I had big plans in Pakistan that I would pursue acting and comedy over there and theater and everything, along with my other profession. तो मुझे जब मैं वहाँ से आया ना, तो जब कोई नया इमिग्रेंट आता था, he's like, यार मैं ना एक हब को छोड़ रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी वहाँ पे, मेरी सारी ऑडियंस वहाँ पे, मैं पला बड़ा वहाँ पे हूँ. तो शायद यूके might not be able to provide me that kind of cohesive platform of desis. True. That was my biggest fear. Yeah. But when I came here and you invited me to your show in Frog and Bucket in Manchester, जहाँ पर मानी भाई भी थे, तो वहाँ पर मैंने देखा you made me feel like I'm still in Pakistan, and you can do Punjabi jukte, you can do Punjabi jokes and Urdu jokes and Bollywood references, Lollywood references, and actors की बातें हो रही हैं जनाब, ड्रामों की बातें हो रही हैं. तो आपको ये किस point of your journey समझ लगा कि यार it's not very different, you can still thrive on that desiness of the community and do your art? So first of all, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया से बाहर even better than Dubai, यूके में हमारी obviously we have such a large community, ठीक है. ऊपर से यहाँ पे you know we are free to do what we want. कोई ऐसी restriction नहीं है, कोई हमें special permissions लेने की जरूरत नहीं है. तो हमारी जो देसी community है, they are second, third generation. तो वो लोग, a lot of people here in the UK, I believe, are still very close to their culture. घरों में अभी भी पंजाबी, मीरपुरी, उर्दू बोली जाती है. So a lot of the young people here as well understand the humor. They grew up watching Bollywood movies और ये वो. तो जब मैं यहाँ आया, मैंने वही 2006-7 में YouTube start किया. I started meeting people, started interacting with people. I started stand-up good 2012, 2013 time. तो मुझे लगा कि this is, क्योंकि जब आप YouTube पे या घर बैठ के जैसे कैमरे के सामने वीडियो बनाते हैं, ये एक चीज़ होती है. जब आप लोगों के अंदर जाते हैं, you meet them. So I would say from 2013 all the way till end of 2019, I performed at several events, from charity shows to award events to birthday parties,
anything you can imagine, ठीक है. तो उसमें ये हुआ कि मैंने जाके देखा कि live comedy में people are receptive, people like these little references. They may not want to have a complete Urdu set. तो अगर आप इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके अपने कल्चर को, things they can relate to, things they've seen, you know. तो कॉमेडी तो यही है ना कि people can be able to relate to you. तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ को आगे परस्यू करना चाहिए. I'm not the only one. There are, I mean, I would like to name a few comedians. People like Mani Liaquat, who has been doing this before me. He's done shows with stars as big as Shah Rukh Khan. We have comedians like Atif Nawaz. I mean, Atif does his own thing. He's into cricket now. तो ये लोग मुझे मिले. आतिफ ने मुझे काफ़ी गाइड किया. Mani, you know, gave me some amazing advice over the years. तो there's another guy here called Altaf. He runs a company called Desi Central, Love Entertainment now. तो वो देसी कॉमेडी नाइट्स करवा रहा है 15-16 साल से, जहाँ पे देसी कॉमेडियंस नॉट जस्ट फ्रॉम द यूके, डिफरेंट मुल्कों से आके यहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा सीन बन चुका है. और क्योंकि हमारी कम्युनिटी मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में ज़्यादा है, सो पीपल आर लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट वेयर दे कैन समटाइम मे बी टेक देयर पेरेंट्स. You know, they can take their parents, they can go with their family and come and enjoy it. And I'm just trying to take it to the next level. And मुझे लगा when I saw you, and I speak to other people as well, when I see somebody I think I have got potential, I try to contact them, or go out of my way to contact them. क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को फायदा हो सके, and vice versa, you know, because I think you said earlier कि आपने मुझसे सीखा है ना. I've learned a lot from you, you know, your work ethics, you know, your the way the fact that you're amazing in your videos. Now you're taking, you know, putting so much effort in your stand-up. So I guess life is all about learning from each other and getting motivated rather than हम कहें कि यार अगला करदा होएगा, कार होएगा, ये वो. मुझे लगता है कि हमें ख़ास तौर पे एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी हम दूसरे को अप्रिशिएट इतना नहीं करते एज मच एज अदर्स डू. सो आई फील कि जिस दिन हम अगले की भी तारीफ करना शुरू कर देंगे, झूठी नहीं सच्ची वाली, तो you know, things will change for us. It brings me to a very important point in the life of an artist. In the life of an artist, since you've been doing it for 20 years, I mean, you've 20 years पहले आया है, doing it for less than that. चलो 15 years. 14 साल पहले तो आपकी वीडियो मैंने देखी है, तो चलो 15 साल. Yes. 15 साल is good enough to have been gone to. मेरी इंग्लिश फंस गई है, मेरे टेंसेस खराब हो गए. यार तू को कह रहा इंग्लिश कर, तू कर ला पंजाबी कर ला तू. यार पता नहीं यहाँ पर रोज इंग्लिश बोल के ना रिफ्लेक्सेस बन गए. और मैं कहने लगा था कि 14 years are enough to have gone through all the emotional phases and the turmoil of being a comedian. Should you be a comedian? Should you not be a comedian? In that process, पहले मैं इस पे बात करूँगा कि how do you cope with the insecurity part of this profession? Because showbiz, no doubt, is a very insecure profession. Yeah. And there are very few people who manage to overcome that insecurity, jealousy, and become bigger than all of these negative emotions and spread positivity. I have observed that you are such an inclusive person. You are with like 10 different people at the same time, being yourself, and you have that positive energy. कल जब हम shoot पे थे तो रात was praising you कि यार ये जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो, he's very open minded, he is very generous and he lifts people up. ठीक है. तो how आपने कभी struggle किया? क्योंकि I have gone through a lot of phases when I'm like, okay, वो बंदा आगे निकल रहा है, वो बंदा आगे निकल रहा है, and then I like, yeah, it's just a business. It took me a long time, bro. But what has your journey been? I think शुरू में जब हमने YouTube वगैरह वीडियोस की, तो ये जो जय शॉन वाली वीडियोस, तो वो काफी it was good sugar, you know, like it was the thing कि यार चलो अब लोग हमें जान रहे हैं, you know, it was all fun. कभी उसको हमने monetary value से या इस तरह नहीं देखा. And then when I got married, you know, obviously, we had our first child. So responsibilities change हो गई because I wasn't really making any money from it. So for me now it was important to मैंने थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मैंने 2010 और 13 के बीच में थोड़ी ब्रेक भी ली. लेकिन उसके बाद I started getting into stand up. और stand up में ये है कि कोई आपको एक दो तरीके होते हैं as you know. या तो आप सर्किट करें, ठीक है ना, you go there, उठे जाके दूसरी जरा रगड़ा लगाए, मरवानी पड़ती है वहां पे जाके ना, सालों साल, यानी हर हफ्ते आपको ओपन माइक करनी, which is the right way. There's nothing wrong with it. This is the way to do it. Somehow, you know, I had a day job, I had family, and maybe I was lazy as well. तो वो मुझसे हो नहीं पा रहा था.
So I said कि you know मैंने थोड़ा सा नाम एशियन कम्युनिटी में अपनी वीडियोस करके बनाया हुआ है, तो I started contacting people. अच्छा एक और चीज़ है मैं कहना चाहूँगा कि अगर तो आप घर पे बैठ के सोचेंगे ना कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं अहमद हूँ और लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दैट्स नॉट गोना हैपन. यू गोटा गो आउट देयर, यू गोटा मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. मैंने भाई जितना कोई कॉन्सर्ट होता था, कोई छोटा शो, चैरिटी शो, मैं उनको मैसेज करता था कि मेरे पास एक 5-10 मिनट का कॉमेडी सेट रेडी था, देसी सेट. तो मैं उनको मैसेज करता था कि भाई ये आपका कॉन्सर्ट हो रहा है, शो से पहले या शो के बीच में गिव मी 5 मिनट्स एज अ फिलर. आई हैव डन दैट. कभी कोई O2 पे शो हुआ, कोई इधर हुआ, चैरिटी हुआ, फैशन हुआ, जो भी हुआ, और मैंने आई मस्ट हैव डन 20-30 टाइम्स जहाँ पे आई डिड इट फॉर फ्री, बट आई वेंट देयर एंड आई डिड व्हाट आई नीड टू डू. और क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पे और अपने सेट पे इतना बिलीव था कि आई विल बी एबल टू स्मैश इट, तो वो ये होता था कि फिर वहाँ पे कोई मुझे देख लेता था एंड देन दे यूज्ड टू कम गेट मी एंड देन आई यूज्ड टू गेट पेड गिग्स आउट ऑफ इट. तो डिडंट यू फाइंड अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स कि इसको हम क्यों बुलाएं शुरू में? Yes, some did and some said नहीं यार यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. But that's fine. So how were you so resilient? How did you not fall prey to the disappointment of a rejection? नहीं, rejection I guess कहीं होती भी थी. I'll be honest with you, I have been very lucky. मैं नहीं कह रहा कि everybody will have this easy. ठीक है. तो उसमें ये होता है कि you believe in your talent as well. तो कुछ टाइम ऐसे भी था कि I would do maybe one event every 2 or 3 months. तो कोई इतनी regularity नहीं थी. I would say until probably from 2016 onwards, जहाँ पे मुझे लगा कि यार मैं शायद अपनी I have a day job, तो मुझे लगा कि यार अब मैं शायद अपनी day job भी छोड़ सकता हूँ. But you know, I'm just trying to find that balance. और I would say it's also nice to explore yourself. अगर आप एक ही तरह की events पे perform करते रहेंगे, that also slows you down. The fact that you can go to different kind of events. So for me, I've done events in Europe, I've done events in Asia. तो आप अगर आप different dynamics की audience, you know, be it from India, Pakistan, Bangladesh, English events, Jamaican events, Nigerian events, तो हम लोग एक इतनी multicultural society में रहते हैं, especially living in London, कि opportunities are endless. तो अगर आपका यहाँ कुछ नहीं बन रहा, आपका कहीं और कुछ बन जाएगा. So it's all about just exploring yourself. Jokes वही हैं. बट जब मैंने ये जो इंटरव्यूज किए या ये जो शुरू में यूट्यूब किया, इसका मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि मुझे वो इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स है ना, वो काफ़ी मेरी इम्प्रूव हो गई. तो आई कुड गो टू एन इवेंट विदाउट अ स्क्रिप्ट एंड जस्ट चैट टू पीपल and just make things or make content sort of there and then and personalize it for them. People would like to know how is it in London? Because you've been in the London circuit. जी. मैं इनके साथ वेम्बले अरीना में गया आरिफ लोहार का कॉन्सर्ट अटेंड करने. ये बंदा फिर रहा था यहाँ पे और हर कदम पे इसको बंदा जानता था और दे वर मीटिंग एंड ग्रीटिंग हिम, और उस वजह से ये मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे कि यू नो हिम. तो दैट वाज वेरी जनरस ऑफ हिम. लेकिन ये इस बंदे को लंदन में इतने लोग जानते हैं. आई मीन anybody who comes to the UK and wants to pursue comedy should definitely be in contact with this person, otherwise it will be difficult for him. तो आपको how is it in London, the inclusivity and the multicultural harmony, how has that helped you in growing your business? So मुझे हमेशा से इवेंट्स करने का शौक था और मैं थोड़ा एजुकेशन से दूर था. तो माय वाइफ ब्लेस हर, शी पुश्ड मी इन 2016. उसको ना ऑनलाइन एक इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स टाइप मिला. तो शी वाज लाइक सलमान यू शुड डू इट बिकॉज मे बी इट्स टाइम यू गेट ऑर्गेनाइज. तो वो मैंने ना 3 महीने का एक डिप्लोमा था, वो शाम को हुआ करता था क्लासेस किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर. तो मुझे भी था कि यार हम किंग्स कॉलेज में पढ़ते हैं. तो शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही थी मुझे. वो कौन सी फिल्म थी वो जिसमें वो स्टूडेंट होता है, मैं हूं ना, मैंने बड़ा स्टूडेंट होता है. हाँ मुझे भूल गया है. मैं हूं ना में तो मुझे मैं हूं ना वाली फीलिंग. अमिताभ बच्चन वाली गुरुकुल. और जेड़े फैन है ना उनको पता है मैं हूं ना में शाहरुख खान. अच्छा वाज अ स्टूडेंट, लेकिन वो स्पाई था, बड़ी एज का स्टूडेंट, बड़ा एजेंट था आर्मी का. बस समझ गए हो ठीक है. तो बस मैं हूं ना वाली फीलिंग सबकी नहीं होती लक्ष्मण. किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना. तो वो मैंने कोर्स किया एंड देन उसमें कोई मैंने अवुंड से कि कोई खास चीज सीखी, बट उसमें ये होता है कि उसमें आपको एक अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है. आप यू हैव टू कॉल रियल वेंडर्स, आपको वेन्यू बुक करना होता है, आपको ये सब चीजें करनी होती हैं. थोड़े आपको टास्क, आपको चैलेंजेस मिले एंड देन देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. तो वो मैंने जब कोर्स किया वो मैंने करके छोड़ दिया. 6 महीने मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया. आई गॉट माय कंपनी रजिस्टर्ड
तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नबील भाई, ही इज आवर अकाउंटेंट एज वेल, तो उन्होंने बड़ी मुझे हेल्प की। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ करना चाहें, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू जो कि अच्छी आपको एडवाइस देंगे। सो आई बीन वेरी लकी कि आई हैड दिस पीपल, a team. For example, I have a team now, somebody who is a great photographer, somebody who's great with accounts, somebody who's great with marketing, somebody who's great for your website, your design. तो अगर आपकी एक ऐसी अच्छी टीम बन जाए तो वो भी आपके लिए एज अ क्रिएटिव माइंड बड़ा अच्छा है कि you don't have to worry about 10 things. There are people to look after that. तो सलमान भाई यार, I've seen you doing comedy yourself and you host your own shows. जी. But how did you get into organizing the events? And also, you don't only organize comedy events. जी. You don't only host comedy events or concerts and everything, but you also do Qawwali events. How the hell are you managing all those things in one body? But yaar, I always have a passion for music. I love Qawwali music like anybody else does. और कॉमेडी तो मैं हमेशा से करना चाहता था। असल में क्या हुआ था कि back in 2017, 2018, I was doing events, लेकिन lot of private events and stuff, तो उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था, and as I don't do the typical English comedy circuit, तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसे events होने चाहिए। तो as a big cricket fan, which you know, we'll come to cricket. तो मुझे लगा कि यार तो I had this concept in my mind कि why don't we do a show, क्योंकि UK में है ना, आपने पता नहीं नोटिस किया, यहाँ पे ना we call it the urban or black comedy circuit, जहाँ पे there are comedians from African and Caribbean background. तो उनकी ना कॉमेडी शोज होती हैं, नाइजीरिया वर्सेस जमैका पोस्टर लगे होते हैं, तो इसमें आधे नाइजीरियन कमेडियन होते हैं, आधे जमैकन होते हैं, वो फिर शो दे विच ना कुत्तम कुत्ती होंदे ना, आपस में लड़दे ने एक दूसरे मामा भैणा, you know. So I was like, यार this is great, you know, they have Jamaica versus this. तो मैंने कहा यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त रहेगा. So I shared that with Atif, and I think I told Mani as well. तो मैंने अपने सारे कमेडियन फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने कहा हाँ यार बिल्कुल ज़बरदस्त. नहीं ज़बरदस्त तो हो गया, लेकिन ऑब्वियसली शो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको हॉल बुक करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और आप अपने कमेडियन से, मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको बुक करूं या इवेंट ऑर्गेनाइज करूं और फिर उनको बोलूं कि यार आप आओ यार फ्री में परफॉर्म कर लो. सो इन शॉर्ट मैंने अल्लाह का नाम लेके एक हॉल बुक किया, 700-800 पाउंड सिर्फ बुकिंग का खर्चा था, ठीक है. आपने वो जेब से दिया? जेब से दिया. फिर मैंने 6 कमेडियंस बुक किए जिनको मैंने, मतलब आई डोंट वांट टू से द अमाउंट, बट अच्छी अमाउंट थी जो कि आज भी मिले तो आप कहेंगे ठीक है. अच्छा. 6 कमेडियंस को मैंने वो ऑफर की. उसके बाद हमने एक सिंगर, हमारे दोस्त हैं आमिर भाई, उनको भी मैंने बुलाया. सो वी जस्ट पुट एन इवेंट टुगेदर. तो बेसिकली मैंने इवेंट पे 2,500-3 हज़ार पाउंड, पाकिस्तान कितने बनते आज के दौर में 8-9 लाख रुपया, ठीक है. तो मैंने वो अपनी तरफ से 10 लाख आप कह सकते हो कि वो मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर दिया टू पुट अ कॉमेडी इवेंट कॉल्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. That was a huge leap of faith, I am guessing. ह्यूज लीप ऑफ एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने कोई 50 बंदों का इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया था उससे पहले, ठीक है. तो इट कुड हैव गॉन ईदर वे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक तो उसकी आप मार्केटिंग कह लें, और मार्केटिंग में एवरीबडी हेल्प मी. मैंने उसके पोस्टर छपवाए, मैंने जी लोगों की गाड़ियों की विंड स्क्रीनों पे पोस्टर लगाए, इवेंटों के बाहर खड़े होकर क्या है, कम टू माई शो, कम टू माई शो, कम टू माई शो. मैं नींद में कह रहा हूँ कम टू माई शो, मुझे कोई ट्रेन में मिल रहा है, बाथरूम में मिल रहा है, क्यूबिकल्स पे मैं कह रहा हूँ भाई कम टू माई शो. तो बेसिकली हमने गुरिल्ला मार्केटिंग की. यू नो, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हो, जो स्ट्रीट्स पे जाके अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हो. तो आपकी ये ड्राइव कहाँ से आती है? आई थिंक वो करनी थी ना. अगर आपने अपनी जंतरी बेचनी है तो यू हैव टू डू इट. इट्स योर बिजनेस. अगर आप अपने बिजनेस के साथ मुखलिस नहीं होंगे. सो एनीवेज आई डिड दैट. और एक अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत भी ऐसी आनी थी कि वो शो अल्हम्दुलिल्लाह गॉट सोल्ड आउट. वी मैनेज टू गेट सम स्पॉन्सरशिप एज वेल. आजकल नहीं मिलती, तब बड़ी अच्छी मिली थी. एंड तो वो 2,500 जो मैंने लगाए थे वो तो वापस आ गए, तो 2,000 बन गई मेरी. यार ये स्पॉन्सरशिप वाला जो आपने क्रैक किया, जी, टेल मी अबाउट दैट, बिकॉज यू बीन टेलिंग मी रिसेंटली कि यार स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं, कैसे मिलना चाहिए, हाउ डू यू पिच टू देम इन द यूके, क्या इंडस्ट्री का सीन है? आई थिंक स्पॉन्सरशिप ये है कि you can get sponsorship for different type of events, be it Wali, be it comedy, ये वो. So there are a lot of businesses who want to spend money on marketing, and वो sponsor यार उसमें ये है कि I personally believe कि ज़्यादातर लोग वो आपको sponsor करेंगे who also enjoy you, like you as a person and enjoy your content. कोई random building, आप अगर कोका कोला पेप्सी के पास चले जाओ, जी हम शो कर रहे हैं, हमारे 200 बंदे आ रहे हैं, they don't need you. They're multi-million-dollar companies, they don't need you. But they may invest in you if you have an idea and if you have something different. अगर आप उनको बताएं कि जी हम एक ऐसी चीज शो कर रहे हैं जिसमें हम
हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हमारा जो शो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका टैग लाइन था कि ब्रेकिंग बैरियर्स विद लाफ्टर। सो द आइडिया वाज टू ब्रिंग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज ऑन वन प्लेटफॉर्म बिकॉज वी आर सो सिमिलर। हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज, हमारा म्यूजिक, हमारा खाना पीना, एवरीथिंग इज सो सिमिलर। लेकिन हम कितने, वो फिल्म थी शायद, कितने दूर और कितने पास, यू नो, वी आर, ठीक है, तो वी आर कितने दूर और कितने पास। लेकिन सो आई थॉट कॉमेडी एंड आर्ट, यू नो, इट्स अ शेम के you know we don't collaborate as much between Pakistan and India. Inshallah after Modi goes. So I like that. Rahul Gandhi all the way. He also makes a lot of Modi jokes, I've heard, but we'll come to that. Yeah, Rahul Gandhi all the way. अच्छा, तो मुझे लगा कि यार this would be a great platform and exactly this what happened. हमने पाकिस्तान इंडिया के नेशनल एंथम बजाए, सबको खड़ा किया. It was just crazy. मैंने शर्टें प्रिंट कराई, ग्रीन शर्ट, so टीम पाकिस्तान, टीम इंडिया, प्रॉपर हमने काम किया. And then people just loved it. And we did a few of those shows. One in Manchester में इतना नहीं चला, but बाकी सारे अच्छे थे. And that's how I got kick-started. उसके बाद I did things like Arabs versus Asians, which was a concept I took nationwide. We did at least 50 shows in the country. Over 15,000 people have seen that show now. 15,000 people. 15,000? 15,000 people. मतलब सब shows के मिला के. In the UK? In the UK. 15,000 लोगों ने वो हमारा. That's a big number, man. Thank you, bro. तो for an idea that you conceived, you executed. जी. 15,000 लोगों ने आके वो देखा. और अभी इस साल अभी हमने थोड़ा उसका ब्रेक लिया. इंडियंस भी आए, पाकिस्तानीज भी आए, पाकिस्तान, अरब्स भी आए, सोमालियन, people from Bangladesh, गोरे भी आए. तो and then अच्छा, उस शो का मतलब ऑर्गेनाइजर भी मैं, मार्केटिंग भी मैं, जो प्रोमो है उसके अंदर आवाज भी मैं, मतलब from designing the poster, मतलब obviously I wasn't designing, हर चीज में you have to be involved. And then after all of that you have to be on stage as well and be funny. That's amazing. मसला ये नहीं है कि वो आप करें, मसला ये कि वो करने के बाद you have to be funny on stage. People would expect 100% from you. वो चीज, it's a bit of a struggle, but I'm trying my best to. No, you're doing very well. I mean, yeah. I learn from you all the time. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के से बाहर आके यूके में या अमेरिका में या कनाडा के अंदर you get more collaborative opportunities with multinational people? इंडियंस के साथ आपकी कैसी collaboration रही है? बहुत अच्छी रही है. I love my Indian brothers and sisters. और यूके में यार क्या होता है कि because growing up, you know, I'm into Bollywood. So through Bollywood, I have great knowledge about India. So if somebody I meet from India, from any part, especially South India, तो अगर वो केरला से होंगे तो मैं उनसे मलयालम के बारे में बात करूंगा. अगर वो तमिलनाडु से होंगे, अगर वो आंध्रा से होंगे, अगर वो यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, कश्मीर से होंगे. So I have good knowledge. I follow Indian politics, Indian media, music. Not Arnab Goswami, but better one. I follow them all the time. तो और बॉलीवुड से भी बड़ा नॉलेज आ जाता है. तो you know, I can hold conversation. तो यूके में at one point the richest man in the UK was a man called Lakshmi Mittal. इनकी फोटो दिखाना, ठीक है ना? ठीक है. तो लक्ष्मी मित्तल इज एन इंडियन बिलियनर जिन्होंने स्टील की कंपनी से अपने मतलब बिलियंस बनाए. इज अ बिलियनर. मिलियनर तो मिलते रहते हैं, ठीक है ना? So I had a privilege to perform 3 times for Mr. Lakshmi Mittal and the family in the UK. Oh wow! So he's the richest Indian in the UK, and I was the richest UK. So how was the experience? Wow. So tell me about that. Wow. यार मतलब मुझे अच्छा हुआ ये कि मुझे उनके घर से हम ईमेल आई हमारी कंपनी को कि वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल कॉमेडियन. तो मैंने जब वो ईमेल पढ़ा ना फीमेल, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, हमने रिप्लाई, मैंने एज अ यू नो रिप्लाई किया. मैंने कहा फीमेल कॉमेडियन इज ग्रेट, हाउ अबाउट एक मेल कॉमेडियन भी साथ भेज दें हम आपको. एंड दे वर नहीं, वी आर ओके विद फीमेल कॉमेडियन, हाउ मच विल इट बी. तो मैंने अपनी तरफ से जो भी प्राइस, जेंडर चेंज करवा लिया. अपने नहीं, एक फीमेल कॉमेडियन थी सुख ओजला, शी इज अमेजिंग, शी इज स्मैशिंग इट राइट नाउ. तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया और मैंने ना फिर कहा कि हाउ अबाउट 200 पाउंड होना 200 और पा के तुसी भी ला लो. उधर से जवाब है नो, वी आर ओके विद फीमेल कॉमेडियंस, फाइन. तो मैंने वो फीमेल कॉमेडियन अरेंज की. तो उस दिन उस जमाने में रोजे भी चल रहे थे, ठीक है? तो इनका, तो मैंने क्या किया, बिकॉज शी वाज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सेंडिंग हर टू समबडीज हाउस, तो मुझे लगा एज अ कर्टेसी आई शुड गो विद हर. तो आई वेंट विद हर. तो यू नो इट्स एन एक्सपीरियंस एज वेल. तो जी मैं पहुंच गया लंदन के पॉश इलाके केंसिंगटन में, जहाँ पे समझ गया ना, अमीर लोग रहते हैं.
यूके में किड़ियां कोठियां होंगी थे ऐसे कहना किसी ने मंजी पानी चाहते बट वहां पहुंच गए और वहां पे वही जो आपके जैसे वो नहीं होती 007 स्टाइल सिक्योरिटी और ये वो सो मुझे लगा कि वहां पे ना कोई आलीशान पार्टी चल रही होगी, हमें कोई ब्रीफ नहीं दी गई कि क्या है ऑन द डे, और वहां पे शैम्पेन चल रही होगी, कुछ अमीर से लोग होंगे कि जी हाँ जी शुरू करो. It was so chilled out. It was Mr. Lakshmi Mittal. It was his son. It was his daughter-in-law's birthday. तो पता है कितने लोगों के लिए हमने परफॉर्म किया? It was a group of 6 people. जी ऐसे सोफे पे बैठे हुए थे. Wow. ये खड़े हुए थे. और अगर आप लोग कॉमेडी जानते हैं तो जितना छोटा ग्रुप होता है उतना मुश्किल होता है, and it's more scary because अगर ना हंसे तो सामने खलोते हैं, ठीक है ना? देख रहे हैं, तो फेस टू फेस बुली कर सकते हैं आपको. तो वो जो फीमेल कॉमेडियंस मेरे साथ गई थी उन्होंने वहां पे 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि obviously you just out of your comfort zone, you know, nobody wants to do a private party especially for such a small audience, so she did very well, she did what she did. तो वो उन्होंने तो 15 मिनट की, उनको इंट्रोड्यूस कराते कराते मैं आप ही 40 मिनट परफॉर्म कराया वहां. I did 40 minutes. 40 minutes as an introduction to another comedian. थोड़ा सा पहले उनसे किया और once he finished I did half an hour. How did that go? और half an hour में बस यही था कि उनसे बातें कर रहा हूँ. एक उनमें लड़का था, उनका दोस्त था, तो मैंने बोला ऐसे लड़के ना करण जौहर के साथ घूमते हैं, उन्होंने स्कार्फ को पहना हुआ था, वो पता चला करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड था वो. तो they start cracking up. But basically कभी-कभी होता है कि आपको वो अल्लाह की तरफ से आती है, तो आप जो भी बोलते हैं ना, आपके मुंह से जो भी निकलता है वो होता है ना कि you smash it, you know, वो लग जाती है बात. तो वो आपका एक दिन होता है कि आप जो भी कहते हैं ना, जड़ी जुगत मारते हैं वो लग जाती है, you know. सही बात है. It smash. तो लक्ष्मी साहब was happy with you and. तो ये लक्ष्मी का बेटा था. अच्छा. मुझे था कि लक्ष्मी जी भी होंगे, मुझे थोड़ी बताया गया था कि वो होंगे कि नहीं. ये उनका बेटा था. अब कहानी में आ गया ट्विस्ट. अच्छा. अब क्या हुआ, 2 महीने के बाद उसी ऑफिस से ईमेल आती है कि वो जो मेल कॉमेडियन था वो हमें चाहिए अब लक्ष्मी जी के घर पे इवेंट. बिग जंप ब्रो. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज सन. यानी कि जब वो अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में जा रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि डैड बिजनेस की बातें बाद में, देयर इज अ कॉमेडियन कॉल्ड सलमान मलिक, यू गोटा चेक हिम आउट डैड. आपके नेक्स्ट डिनर पे, वही होता है डिनर फॉर schmucks जो इडियट्स को बुलाते हैं, आपके नेक्स्ट डिनर पे यू गोटा चेक दिस कॉमेडियन आउट. कपिल शर्मा होगा, अपने घर पे होगा, सलमान मलिक इज द नेक्स्ट थिंग. तो मैं चौड़ा हो गया. मैं कहा मैंने कहा अच्छा, मैंने ना दिल खोल के पैसे मांगे. मैंने कहा सलमान मलिक 1,500 पाउंड ठीक लगता है. ये किस जमाने की बात है? ये 2018 की बात. अच्छा ठीक है. 4 years ago. तो मुझे लगा लक्ष्मी मित्तल की फोटो पेश करना, मैं मजाक नहीं कर रहा. आपकी अपनी तस्वीर होगी वो भी दे दीजिएगा. मैं दे दूंगा आपको. तो मैं चला गया. तो वही उसी ब्लॉक में मुझे नहीं पता था मित्तल साहब का घर 3 घर छोड़ के है. तो वहां पे मैं गया यार. सो दिस इज माई मोमेंट, आई एम अबाउट टू मीट अ बिलियनर. वो इंडिया में आता था सिमी ग्रेवाल का शो, मैंने वो भी देखा हुआ था बचपन में. एंड दिस का इज द थिंग भाई, वो अपने घर पे ना बिल्कुल नंगे पैरी चप्पल में, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं. एंड देन ही कम्स टू मी, ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, सर आई नो हु यू आर. एंड देन ही गोज कि हाँ हमारा बस ये थोड़ा फ्रेंड्स आए हुए हैं इंडिया से, इधर उधर से डिनर चल रहा है. सो हम्बल, जस्ट लाइक दैट. तो आदित्य ने आपके बारे में बताया था एंड विल सी यू सून. मैंने कहा वाह. और फिर उनकी वाइफ आई, यू नो, शी वाज सो लवली एंड शी वाज बेटा आपको कुछ चाहिए, यू नो. मुझे लगा कि मैं अपनी मासी के घर पे आया हूँ. ये अमीर लोग इतने हम्बल और चप्पल पहन के कैसे घूमते हैं घर पे यार, पता नहीं. एंड आई वाज लाइक, मैं ना उनके ग्रैंड किड्स के पुराने कमरे में कहीं मुझे उन्होंने बंद किया था कि उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना कोई 7 कोर्स मील चल रहा था वहां पे. तो वो 7 कोर्स मील में पता है उनके भाई प्राइवेट शेफ होते हैं, कोई उबर वाले का काम नहीं होता. ठीक है. तो वो खाना खाया उन लोगों ने और फिर वो एक बड़े से डाइनिंग टेबल बैठे, तो उन्होंने मुझे वहीं बुला लिया. तो मैं अपनी तरफ से था कि मैंने पिछली पार्टी में स्मैश किया, I'll kill it. अच्छा ठीक है जी. मैं चला गया. अब मैं वहां खड़ा हो गया. तो ये रूम के डायनामिक्स है कि जो एवरेज एज ग्रुप थी ना वो 65 प्लस थी रूम की. तो I was like okay, I'll do it. And my performance was disappointing. How did you cope with that? Comedy language में कहते हैं I bombed. Yeah, you bombed. Like you did one good show for the richest man's son in the UK. Because and then he recommended you to his father, and then you get there, and then it was a bad day. How do you cope with that kind of contrast in a comedian's life? यार मुझे सोच के यार पता क्या होता है कॉमेडी में यार, आप इमोशन से जाते हैं कभी भी कि जब नहीं चलता आपका, I'm sure happens to you as well. Oh yeah.
आपको अंदर, आप ना बहुत छोटा, आप बड़ा अकेला महसूस करने लगते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि पता नहीं, आपको लगता है कि या अल्लाह मैंने चोकला है, ऐसे चोकला है ना। तो इट वाज, अच्छा हुआ ये था कि आई वाज डूइंग इट बट समहाउ वो ऑडियंस का कनेक्शन नहीं बन रहा था, और आई कुड सी कि सम ऑफ देम वर जस्ट रियली स्लीपी। रात के 10:30 बज चुके थे, उन्होंने 7 कोर्स खाया है, और अब उसके बाद उनकी क्या एनर्जी रह जाएगी कि सलमान मलिक को जाहिर है भरे हुए पेट के साथ दिमाग तो चलता नहीं है। उसके बाद मैंने ना उनके साथ, यू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज गोल्ड, कॉमेडी गोल्ड, मैंने लक्ष्मी मित्तल साहब और उनकी जो फैमिली है ना, जो भी दोस्त उनके आए थे, उनके साथ बॉलीवुड डम शराड खेलना शुरू कर दिया। सीरियसली? अल्लाह की कसम, सीरियसली? लाइक ये इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, मूवी कैसे करो? मैंने एक कभी खुशी कभी गम, मैंने उनमें से एक बंदे को टेबल, यार क्या हुआ था, जोक्स तो चल नहीं रहे थे, वो कहता ना डूबते को तिनके का, तो मैंने कहा मैं कैसे कुछ करूं कि दे लव मी, यू नो, ऑब्वियसली दिस हैपनिंग, कैसे करूं, कॉमेडियंस डेस्परेशन। तो मैंने डम शराड उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने उनमें से एक को कहा कि आ जाओ इधर, आप में से एक प्लीज उठ के आ जाए इधर, तो उनको कहा कभी खुशी कभी गम, तो मैं उनको हेल्प आउट कर रहा था कि कभी खुशी कभी गम, 4 वर्ड्स, यू नो, तो वो हमने किया, और फिर वो रूम में, एंड दे वर वेरी नाइस, यू नो, दे वर वेरी नाइस अबाउट इट, दे ट्राई टू बी इन्वॉल्व, वो उन्होंने किया। और फिर एक बैड टेस्ट है, उसके बाद सारे उठ के निकलने के लिए रेडी हो गए, तो मैंने मतलब एक पैड़े मुंह से कहा कि मित्तल साहब को, सर एक सेल्फी हो जाए सर, एंड देन आई डोंट थिंक ही वांटेड, ही इज लाइक अच्छा जी, एंड देन ही टुक अ सेल्फी विद मी, एंड देन आई जस्ट पुट ऑन, मैं वहां से निकला, आई न्यू व्हाट आई डिड, बट मैंने जाके फेसबुक पे डाली, और फिर एवरीबॉडी इज लाइक कांग्रेचुलेशन, वेल डन सलमान, मित्तल साहब, लोग मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे, लेकिन मुझे पता था कि आई डिड अ शिट जॉब। That's a secret, लेकिन bro. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, what happened? तो अब I was like कि मित्तल फैमिली एंड मी डन एंड डस्ट, until 6 months later फिर ईमेल आती है, Really? कि आर यू अवेलेबल, कि अब यानी कि उनका बेटा और मित्तल साहब, दे हैव अ फार्म हाउस, अमीर लोगों के होते हैं गिलफर्ड में, वहां पे कहीं पे, वहां पे उनकी एक पार्टी है जहां पे फैमिली आ रही है इंडिया वगैरह से, वहां पे उनका कोई आई थिंक बर्थ, दे सेलिब्रेटिंग बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वहां पे आर यू अवेलेबल। तो वो ट्रॉमा मुझे पहले वाला याद था, वो फन वाला पहली वाली गिग भी मुझे याद थी, बट आई थिंक द सेकंड टाइम अगेन द सन वाज बुकिंग, बट फादर वाज, You won the heart of the sun. हाँ, तो सन वाज बुकिंग, फादर वाज देयर, गोना बी देयर एज वेल। तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगा आई नीड समबडी अ सपोर्ट, सो आई कॉन्टेक्टेड माय बडी आतिफ नवाज। आतिफ भाई के साथ मैंने बात की, एंड देन me and Atif was luckily available, and me and Atif went to it. I don't think Atif does these private events, but when I told him it's Lakshmi Mittal, he said he did it for me. मैं और आतिफ वहां गए, पहुंचे, वो हमें उनका एक सिक्योरिटी वाला लेने आया, पता है हम जा रहे हैं रेस, उनके अपने गोल्फ कोर्स, घोड़े घूम रहे हैं, यू नो, वो प्रॉपर डैनी डिजोम्पा वाला सिस्टम था वहां पे, ठीक है ना, प्रॉपर। तो हम पहुंचे वहां पे, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने घर बनाया हुआ है, शायद गूगल पे फोटो होगी उसकी, तो वो उन्होंने अपना खुद वहां पे स्पेशल बनाया हुआ है। तो वहां पहुंचे, अब हम वहां पे गाड़ियां, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार ये पार्क्ड हैं, मैं और आतिफ खड़े, एंड आई वाज सुपर नर्वस बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आतिफ वाज लाइक, ही वाज सो सपोर्टिव, सलमान कोई ऐसी बात नहीं है, यो तू फाड़ देगा, यू विल डू इट सलमान, नॉट अ बिग डील, until I saw again बड़े मित्तल साहब walking outside without shoes, and then he comes to me, and then he goes to me, मुझे आज भी ये याद रहेगा, he looks at my face, he goes, आप वही हैं वो जो आए थे उस दिन लास्ट टाइम? मैं जी, and then he goes to me, नहीं उस दिन मजा नहीं आया। Oh my God! And the host is saying that to your face before the show. मुझे second hand बुरा लग रहा है। भाई मेरे पैरों तले जमीन, कारपेट, शीट, हर चीज निकल गई कि इतना बड़ा आदमी आपको मुंह पे कह रहा है कि you were pretty shit that day. And अल्लाह कभी किसी को ऐसी सिचुएशन में ना डाले। Bless him, he was being honest. Nothing against him. He was being honest. देसी अंकल तो ऐसे ही होते हैं ना, मुंह पे कहते हैं नहीं, और खासतौर पे जो बिलियनर लोग होते हैं, यू नो, ये they like to tell people how it is, इसी तरह वो तरक्की करते हैं, ठीक है ना, they don't hold back, you don't need to hold back, you know, बड़े straightforward। I like your खाम-खा का optimism about this, and ये जबरदस्ती का ठोस रहे हैं नहीं यार। Anyways, comes to
शो टाइम, विद हाफ एन आवर बाद शो टाइम अंदर हम गए तो आदित्य दर्शन ही गेव अस अ लिटिल टूर ऑफ द प्लेस। तो अब शो टाइम मुझे लगा कि चलो थोड़े ज्यादा ऑडियंस होंगे, लेकिन यार अच्छा ऑडियंस क्या है कि यहाँ पे ऐसे सोफे लगे हैं, यहाँ पे उनके बड़े सोफे होते हैं, हमारे थोड़े छोटे हैं। वहां पे उनकी ना कोई दिल्ली से कोई उनकी फैमिली आई हुई थी। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ऑडियंस वाज 11। और वो आधे ऐसे अब आप आपके घरों पे जो आपके कजन आए होते हैं, देखो आप आधे यहाँ सोफे पे बैठे हैं, कोई नीचे बैठ गया, किसी ने हल्की सी चादर ले ली है, ये सिस्टम मतलब सो लाइक कोई उनमें कोई नखरा नहीं। उनकी जो बहू है मुझे कहते सलमान करें कि सब पानी ये वो, आपको ऐसे ही लग रहा है कि आप अपने किसी दोस्त की फैमिली के घर गए हैं एंड दे सो चिल्ड आउट रिलैक्स अपने घरों में बैठे हैं। सच वो कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं साधारण भारतीय परिवार। Oh my God, you said that in one breath. साधारण भारतीय परिवार with man from पड़ोसी देश। क्या बात है। But anyways, in simple language, I performed there, Atif performed there, and we both smashed it. Yay! Finally. We both made them laugh. And Lakshmi Mittal ji recorded a special message for me कि Salman performed for us today and we had a great time. Yay! Clapping. Whew. So, wow. The moral of the story is कि in life, every day is not going to be the same. You are going to face your challenges. You are going to have ups and downs. It's how you approach it and how you keep a positive attitude towards it. It's like, okay, that brings me to a very good, important question about comedian's life. How do you cope? ये तो एक वाकया पता है. How do you cope with people who tell that you are not funny? Because in every comedian's daily life. कल रात को किसी ने कहा था मुझे. क्या? Tell me about that. मैं एक शादी पे था तो एक आंटी कहती हैं आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो बेटा. मैंने कहा नहीं. कहती लग ऐसे रहा है. मैं अपने बंदे को करा लाया फिर लग ऐसे रहा है. नहीं, you know there may be people, but I think the main चीज है कि you go with the majority. आप वीडियोस करते हो ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है, तो कमेंट्स नहीं आते कि ऐ की बकवास है, ये क्या चावल मारी है. आप डॉक्टर हो, डॉक्टर जैसे बंदे को ये इस तरह की फूसी के बारे में आपने वीडियो बनाई है, it doesn't go with your image. Why are you wasting your time? आप क्यों नहीं डॉक्टरी पढ़ के अपने जो बाल नोचते, you know? But so people who are fucking frustrated have nothing better to do in life. बड़ा easy है कि दूसरों पे comment करना. You know, it takes balls which you don't have to go on stage, to go online and talk about things we do. तो positive constructive feedback लेना जरूरी है. एक दो बार ये हुआ है कि sometimes क्या होता है कि इधर अगर during your act, यानी आप अगर कोई ब्रेक है, अगर आपको कोई ऐसा on the day बोल दे, it can affect you and your mental health. मेरे साथ हुआ है कि मैं शो कर रहा हूँ अभी, तो किसी ने आके मुझे एक ऐसी बात बोल दी है कि मुझे एकदम फील होने लगे या मुझे लगा कि मुझे इस बंदे को रिप्लाई करना चाहिए. आई थिंक द सूनर यू शट ऑफ एंड एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो एंड ट्राई एंड इग्नोर देम, द बेटर इट्स फॉर यू. आई थिंक मैंने ना आपसे ये सीखा, आपने मुझे बर्मिंघम पे एक दफ़ा एज अ गेस्ट इनवाइट किया कि आओ, मानी इज परफॉर्मिंग एंड अ कपल ऑफ अदर कॉमेडियंस आर परफॉर्मिंग. एक इंग्लिश कॉमेडियन था, नाम मुझे भूल गया, इज डूइंग फॉर 20 years आई थिंक. आप मुझे कहा विक्टर तो शायद विक्टर था, लतीफ होगा शायद. तो ना आपने कहा आओ देखो, तो मैंने वहां देखा तो वहां पर आपको जानने वाले लोग बहुत सारे आए हुए थे, आंटी सी देसी आंटियां. तो अच्छा मैं अब नया नया आपको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं कहा यार मेरा पहला साल हो रहा. आपने कहा तो वहां पर आंटी ना शो के बाद आप कहती हैं यार सलमान ये जोक मैंने पहले भी सुना था आपका ना, तो एंड अब मुझे लगा कि सलमान विल बी अफेक्टेड ना सलमान विल बी लाइक ओ माय गॉड, बिकॉज मैंने सोचा यार मैं सलमान की जगह होता ना, लेकिन सलमान वाज लाइक रोस्टेड दैट ऑडियंस मेंबर. लाइक हाँ ऐसी आंटियां होती हैं. इससे पहले कि आंटी आपको कहती ना कि ये जोक मैंने पहले सुना हुआ था आपका, यू लाइक हाँ ऐसी आंटियां होती हैं जो कहती है ना पहले जोक सुना हुआ तो ना आती हैं. Yeah, you can't count. I mean, I totally understand that it's when you're doing comedy daily, you can't generate new content every time. It takes few months to work on some new content. How did you learn this behavior of coping with the feedback? नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा. नहीं, you have to be नहीं, again देखें कोई ऐसा feedback हो, कभी आपको कोई message कर देता है, you have them. So again, I'm not saying कि feedback आपको नहीं लेना चाहिए. You have to take it. It's good for you most of the time. लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ना वक्त और मौका नहीं देख के बगैर ही just you know there is a place for everything. Yes. तो अगर आप वो out of place हो, तो वो ये होता है कि इंग्लिश में कहते हैं then you need to put them in their place.
Actually, I think only after you have lived this kind of life for a decade, you learn this. Because मुझे याद है इल्फर्ड वाले show में कुछ हुआ था and you were like, bro, there are things only we can control and there are things we can't control. Audience members can, and you can't really settle the fight between an audience, audience members. So you like take responsibility of what you can do and don't take shit about what you can't do. Exactly. On the day क्या होता है कि मेरे पे ना बहुत pressure होता है. When I'm organizing event, I'm not this fun guy. Comedy में मैं होता हूँ, but when I do Qawwali events and other events, there's a lot of pressure because there is a lot of stakes. A lot of people are relying on you on that day. So I'm very loud and I'm very like serious and I'm very agitated as well. So I try to smile and have a good time. लेकिन वो होता है ना कि कभी-कभी pressure handle करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. And I tell everybody कि sorry, I'm not gonna offend you today. लेकिन अगर मैं आपको आज कोई तल्ख बात कर दूं तो I'm sorry, I'm just not being myself because I've got a lot going on. जब सब कुछ ठीक हो जाता है, events going fine, then I'm a bit more relaxed and chilled out. But until we've done it and we've smashed it, there's a lot of pressure. The thing I've learned from you is that when you're doing comedy as a job, it is totally different from doing comedy on some days and feeling like, wow, you've done great. But when you do it daily, it totally changes your approach. It's like our morning jobs as well. So people who are watching us occasionally, it is very easy for them to comment on a certain type of content that we put out there, and like, you're good, you're bad, you should have been like this. So like it's very exactly. Or देखो, for example, I'll give you an example. So this weekend I performed at 3 weddings in the last 3 days. Last 3 days. Oh my god, that's exhausting. 3 दिन के बाद I'm performing in Saudi Arabia at a comedy festival. Oh, tell me about that, bro. Big news. He was like, Ronaldo, here I come. Ronaldo गया ना रियाद, मैं कैसी भी जाइए, you know, Al Nasr. I'm gonna go to Al Nasr. Shirt उनकी ना सस्ती वाली कुछ shirt में लेके. अच्छा. तो ये I think Saudi Arabia, Riyadh especially is a new hub of entertainment, and it's great that they're opening up to new ideas. There is a comedy club there called Riyadh Laughs, and yeah, Alhamdulillah, I had the opportunity. They got in touch with me a few weeks ago कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके perform करें. And the great thing is, you know, they fly you in, they look after your flight, stay, airport pickup. As an artist, आपको क्या चाहिए कि आप, you know, आप जाके दूसरे मुल्कों में लोगों को हंसा सकें and you know, be able to perform there. और what makes this trip even more special is कि जो मेरी family है ना, my parents, they're based in Bahrain, जो कि 4 घंटे की drive है. तो मेरे जो वालिद साहब हैं, वो बहरीन में रहते हैं, वो UK की दफ़ा आए हैं. तो he has never seen me perform live. No. तो मेरे वालिद साहब, my dad, जिनसे बचपन में मैंने बड़ी डांटे और कोट खाई है, he's going to be watching me perform live in Saudi Arabia for the very first time. I'm nervous, I'm excited at the same time because आपको पता है फिर पाकिस्तानी पियों ने खुश करना है ना कुछ. आप 14 साल से वीडियोस बना रहे हैं सारा कुछ, तो your father must have seen you all that. Yeah. But he hasn't seen your stand up. He hasn't seen me live stand up. No. Live stand up. So uncle, good luck. Give good comments. Please be nice to your own son. पता नहीं He's your own creation. क्योंकि मैंने काफी चीजें improvise करनी है, पता नहीं मैं वो audience में बैठे होंगे वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह खैर करे. Have you? I think it's very awkward when you're performing and your parents are in the audience. जो मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शो के माना बताया ना, my mom was in the audience, जो मेरा पहला शो था. So mom is different, bro. Mom, yeah. Father is a different vibe. सही बात. तो have you ever performed जहाँ पर आपकी अम्मी audience में हो या आपके घर वाले हो और आप वो कुछ बातें ना कर पा रहे हो जो आप normally करते हैं? नहीं, मैंने कर दी थी. अम्मी मेरी बड़ी चिल है. रिसेंटली मैंने उनके साथ वीडियो बनाई है, अगर आपने उनकी आवाज सुनी हो, शी इज वेरी चिल्ड आउट. आई कैन लिटरली टॉक अबाउट एनीथिंग अच्छा इन फ्रंट ऑफ हर. तो एंड शी इज वेरी टैलेंटेड. आई डोंट थिंक उनका टैलेंट एक्सप्लोर हुआ है. तो वन थिंग आई रियली वांट टू डू इज मे बी मेक मोर वीडियोस विद हर बिकॉज़ आई थिंक देयर इज अ थिंग. आपको लगता है कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा जेनेटिक भी है? 100% जेनेटिक है. माय मम इज वेरी आउटस्पोकन. आई थिंक लेकिन जो मेरे डैड हैं, ऑल्दो ही इज दैट, तो वो आई रिमेंबर ग्रोइंग अप कि जो अंकल्स हमारे जो डेरे पे कहीं चले गए हैं, वो माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू मिमिक के इसकी आवाज निकाल दी, उसकी आवाज निकाल दी. सो ग्रोइंग अप आई हैव सीन हिम. ऑब्वियसली हमारे साथ वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, बड़े डाढ़े होते थे, बट आई हैव सीन हिम इन हिज सर्कल बीइंग दैट फनी गाय. और आई थिंक हमारी पूरी फैमिली में, मैं वही आपको बता रहा था कि मैं अभी पाकिस्तान गया था रिसेंटली, तो मेरे अब्बू के कजन बैठे हैं, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, वो सारे अंकल बैठे हुए हैं और गप्पे चल रही हैं. ओ पता ओ भाई आया हुआ है, एक बारी ना आया हुआ है, एक बारी ओ है, सारे लगे हैं. ठीक है, तो मैं ये वहां पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि 8-10 लोग बैठे हैं. अगर कोई रूम में अभी एंटर हो
तो उनसे पूछा जाए कि ये जो लोग बैठे हैं इनकी बातचीत सुन के आपको क्या लगता है कि इनमें से कमेडियन कौन है, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन दे विल बी सेइंग कि ये कमेडियन है, बिकॉज एवरीबॉडी वाज जस्ट सो ऑर्गेनिकली फनी. So your family is organically funny. आई थिंक वो मुझे वहीं से आता है. हाँ जी. So it's in your genes as well. जी जी. तो although मैं कह रहा हूँ कि my father's been very serious and I have had this childhood जहाँ पे he was very strict with me, but I have also seen him do jokes, mimic, you know, ऐदी आवाज इंजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. And now he now sends me videos, you know, he send me funny clips अगर कोई इनको नजर आए ये वो. और आपको कभी मार पड़ी है अपने अम्मी अब्बू से कुछ ऐसा कॉमेडी करने पे या कोई ऐसी हरकत करने पे? तो अगेन जब मैं पेरेंट्स के साथ रहता था तो कभी कॉमेडी और ऐसी चीज कुछ भी नहीं की. अच्छा. तो दे डोंट नो. लेकिन हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड मुझे जितनी मार मुझे पड़ी है, स्लीपर बेल्ट, एक दफा मेरे अब्बू को ना गाड़ियों का काम था, एक दफा उनको एक्चुअल हंटर मिला था गाड़ी से, वो भी मैंने खाया हुआ है. लाइफ ऑफ अ देसी चाइल्ड. हैंगर, बेल्ट, यू नेम इट, जो वेपन आपके ज़हन में आता है ना वो आप. वाइपर पड़ा कभी आपको? हाँ, शायद हो सकता है. मुझे वाइपर पड़ा है. मुझे स्टील का ग्लास भी पड़ा है. आपकी मेमोरी वाइप तो नहीं होगी इसकी बात? मुझे स्टील का ग्लास पड़ा है. स्टील का ग्लास तो अच्छी बात है ना, टूटता नहीं. एक दफा तो लोटा मार दिया मेरी अम्मी ने मुझे. लोटा बम उस सहन में पड़ा हुआ था. डंडे और जाले साफ करे वाला डंडा नहीं होता, वो भी मारा यार मुझे. मतलब I mean, it's an honor for children to have been beaten by such instruments. I mean, I'm a father now. In Desi community. I'm a father now. मुझे लगता है कि I think वो हमारे इसमें है कि जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते. I believe कि मारना, प्यार से definitely बात करनी चाहिए, लेकिन there are situations जहाँ पे I wouldn't say extreme, but छोटी मोटी चंडा चुंडा कई हद तक जरूरी भी होती है. आपको लगता है कि यूके में रह के आप उतना नहीं मार सकते बच्चों को जितना आप पाकिस्तान इंडिया में रह के मार सकते हैं? 100% यहाँ पे हाँ. लेकिन आई थिंक एज अ पेरेंट आई थिंक मुझे लगता है कि जो कि मैंने अपनी बीवी से सीखा है, क्योंकि हम तो कुट्टे खाते हैं, तो मैंने से ये सीखा है कि यू नो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. यहाँ पे होता है वो जी नोटी स्टेप होता है, यू नो. व्हाट्स दैट? नोटी स्टेप नहीं पता आपको? आई एम नॉट अ पेरेंट, दैट्स व्हाई. प्लीज एजुकेट मी एंड माय नोटी कॉर्नर. नहीं, तो नोटी कॉर्नर ये होता है कि आप बच्चा थोड़ा शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, देसी तरीके था टू बकवास चुप करके बैठ जाते कमीने. लेकिन इंग्लिश टाइप ये होता है कि आपके घर पे अगर सीढ़ियां हैं तो आपने बच्चे को 2 मिनट का टाइम आउट भी कहते हैं उसको, आइसोलेट कर दिया, उसको 2 मिनट बिठा दिया कि चुप करके यहाँ से आप हिलेंगे. इट्स अ थिंग. इट्स कॉल्ड नोटी स्टेप, नोटी कॉर्नर, टाइम आउट, रिफ्लेक्शन. बल्कि आजकल मेरी 4 साल की बेटी कहती है माशाल्लाह, शी गोज, उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्शन पे बैठी है. मैं अभी उसका नाम, उसका इस चीज का नाम चेंज हो रहा है. पहले उसको नोटी, अब नोटी इज प्रोबब्ली नॉट द वर्ड इन, तो इसको रिफ्लेक्शन नाउ. तो वो रिफ्लेक्शन, तो ये छोटा जा 4 साल का बच्चा इंज बैठ के ना मैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी है अपने. नहीं रिफ्लेक्ट करके आई शुडंट हैव डन इट, यू नो. तो but it does help psychologically, it helps, because they think you know they're going to reflection, चुप करके, they're not allowed to speak, they're not allowed to move, they're just allowed to sit there for 3 minutes or 5, depending on the timing parents set, and reflect. Have you done that with your children? Yeah. All that. It's like a norm in the UK. Ask me, क्या उसका फर्क पड़ता है? हाँ, उसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं. मेरे बच्चे ने Western parenting styles are not made for Eastern children. यार ये अच्छा, ये क्लिप वायरल होगा. नहीं यार, मतलब तो फिर मतलब हमें फिर एक अमेलगम ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरेंटिंग करनी पड़ती है शायद. हल्की फुल्की चढ़ना. आपके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं. 3 kids माशाल्लाह. How on earth are you coping with such a busy comedian lifestyle? You travel a lot. You have 3 and children. I have a day job as well. You have a day job. Tell me about how you cope with your domestic business, your professional business. You obviously, your wife is also there, and there is also a relationship demand. तो आप भजन, whenever I call you, you like attend performing at फलां शादी फलां performance. यार शादियों के अलावा भी करते कैसे? हाँ, नहीं, शादी के अलावा भी आपका अपना बिजनेस है आपका, ठीक है. तो आप कैसे कोप करते हैं इन 3-4 जिंदगियों के दरमियान? 3 बच्चे कर लेना यार, मेरे से एक नहीं होता. 3 I mean, होता वाला सीन हो सकता है, लेकिन अल्लाह दी देना, तू मामा लगना. नहीं, मतलब मेरे एक क्लाइंट होती है. First of all, I think kids are a blessing. I would say the more the better.
The more the better. So you're in that part of the नहीं society. यार अब गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी और आ गया ना यहाँ पे कौन सा आप गाड़ी में 4 बच्चे ठूस सकते हैं, you can't do that. Oh yes. तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह it's good. We had our first one about 10 years ago. Mashallah. And then फिर we have a 2018 and 2019 version. You know मैं वर्जन कहता हूँ तो लॉकडाउन से Salman 2.0, Salman 3.0. by lockdown we had 3. So yes, I think it's all about how you manage. So I do have, for example, मेरे Mondays, Tuesday, weekdays में मेरे पास काफी off time होता है. So I try to do school run, help with the family as much as I can. But again वो कभी पूरा नहीं होता. So it's tough, it's hard क्योंकि इस country में ये है कि you have to strive, you have to thrive, you have to struggle. So it's challenging, but alhamdulillah, I'm trying my best. And I think you are trying your best. कुछ थोड़ा सी तारीफ अपनी बेगम की भी कर दे. Oh नहीं. ये क्लिप हम उनको भेजेंगे because No, I think with her, I met her 10-15 years ago, and to be honest, I would say this is not even a joke. कि to make me who I am, be it things I do, work, comedy, जो भी है, वो होता है ना कि I mean, I don't say I'm successful enough, but वो है ना कि behind a successful man, I think behind me, in front of me, she is always there. वो मुझे first time वेम्बले एरिना में माइकल मैकिंटायर का कॉमेडी शो दिखाने लेके गई 2010 में, हेलो वेम्बले के नाम से. अच्छा. एंड वहाँ पे कोई 12,000 लोग आए हुए थे और मैं शॉक हो गया कि 12,000 लोग सिर्फ 1 घंटे का कॉमेडी शो देखने आए हैं एक बंदे को. आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक भाई ये चीज़ मुझे करनी है. एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी. उसकी वजह से मैंने काफ़ी, क्योंकि शी वॉचेज लॉट ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम्स, मैंने इंग्लिश कॉमेडी, ग्रैम नॉर्टन जो और यहाँ के यूके के दीगर कमेडियंस हैं उनको मैंने देखना शुरू किया, इंग्लिश टीवी शोज देखने शुरू किए, इंग्लिश ह्यूमर को समझा. एंड देन सो यू नो आई डेफिनेटली थिंक यू नीड the right partner, you know, somebody who understands you. And then मैं पूरी जिंदगी I've been very dependent, you know. Yes, I do these things, but I'm also very clumsy and I'm also very careless. I'm also this and I'm also that. So she's been there always to, you know, to have my back and to watch me and to help me, to guide me. So I owe her, you know, a lot. Bhabhi, kudos to you and wonderful job in being with this legend. I hope. And I'm trying to be a better father and a better husband. You know? Indeed, you are. Tell me about your observation about difference in British humor and Desi humor. British humor, bada, you can probably tell as well. No, but I want to know your perspective. I think British humor is quite there's a lot of sarcasm. It's quite subtle. There are no limits. You can. I like that about British humor, you know. You can literally talk about anything. There's no limits, which is good. There's no limits. I think that is a good thing. You could be political, you could be religious, you could be non-religious, you can be but लेकिन below the belt. एक certain community के बारे में अगर आप बात करें, then you are cancelled. There is a big fear of that as well, yes. ठीक है, तो technically speaking, वो जो चीज़ I think you had that 10 years ago कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते थे यूके में भी, अब नहीं है. तो आपको लगता है ये जो कैंसल कल्चर है इसके बारे में, बिकॉज आई थिंक जो लोग दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं ना, दे आर स्केयर्ड ऑफ इट फॉर जस्टिफाइड रीजंस और अनजस्टिफाइड रीजन डिपेंडिंग ऑन व्हाट व्यूज यू हैव अबाउट थिंग्स. आई थिंक अगर आप यूके में मेन स्ट्रीम अगर आप टारगेट करें कि मैंने कहीं मेन स्ट्रीम में, देन देयर इज अ कैंसल कल्चर. हमारे देसियों में कैंसल कल्चर इतना नहीं है अनलेस एंड अनटिल you probably say anything, because हमारे में obviously we take our religion way to, you know, it's very important for us. तो अगर आप unless क्योंकि आप किसी religion को target करके कोई joke कर दें, but I think in our desi culture or desi circuit there isn't much of a cancel culture. Why? In mainstream there Why? Why? Because मुझे लगता है कि जो सेंसिटिव चीजें वेस्टर्न आइडियाज रोकने की कोशिश करता है वो वहाँ हमारे बड़े नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए एग्जैक्टली. हाँ, आई मीन ये एक सैड बात भी है जी. मुझे मतलब कैंसिल कल्चर पसंद नहीं है, लेकिन ये बात के कैंसिल कल्चर हमारे यहाँ है ही नहीं. एग्जैक्टली. और आई थिंक हमारे हर चीज अलाउड है. अब यहाँ पे इस कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने इन्वेंट कर ली हैं या अडेप्ट कर ली हैं जो कि जब आप पाकिस्तान जाएं, लाइक आई बीन टू पाकिस्तान रिसेंटली, पीपल डोंट इवन नो, पीपल डोंट इवन केयर. तो बहुत सारे यू नो लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस कंट्री जो कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, दे नॉट इश्यूज इन द थर्ड वर्ल्ड. वहाँ पे उनका मेन उनके इश्यूज हैं बिजली, कपड़ा, मकान, यू नो,
पेट्रोल प्राइसेस, दे हैव अदर इश्यूज टू डील विद. यहाँ पे क्योंकि वो इन चीज़ों से आगे जा चुके हैं, so they have other problems, but that doesn't mean that those problems needs to go elsewhere. You think that every movement should be contextualized 100%. to a specific geographical area, Exactly. to be able to have an impact on that in that region, right? Yeah. तो आप क्रिकेट के अंदर कब से घुसे और इतना जोश और जज्बा? आप बहरीन से हैं, आपने पाकिस्तान में बहुत कम जिंदगी गुजारी है, फिर आप यूके में आपका बहुत मेजर पार्ट ऑफ जिंदगी गुजरा, आप कॉमेडी करते हैं, क्रिकेट से इतना लगाव कैसे, और आप इतना कंटेंट को फॉलो कैसे करते हैं? क्रिकेट को आपको हर चीज पता होती है कि कौन सा मैच किस दिन है, पाकिस्तान इंडिया का कब है, वर्ल्ड कप के कौन से मैचेस कब हैं? मैं आपसे, जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं आपसे फोन करके पूछ जाता हूँ कि मुझे ये टीवी टॉपिक है वीडियो का, मैंने उससे मुझे बनाना है, तो आप बताएं, तो आप कैसे करते हैं सारा? आई थिंक always a personal interest की बात है, you know. क्रिक इन्फो जो सी वेबसाइट है, मैंने मतलब रोज सुबह हो गया ना, जब उठते हैं न्यूज़ देखते हैं, तो वो एक दफ़ा खोलनी होती है मैंने. अच्छा, इट्स माय रूटीन. अच्छा, तो वो तो आप एक इट्स अ पॉपुलर थिंग. तो क्रिकेट ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब 96 का वर्ल्ड कप था, जब हम सेमीफाइनल में हारे थे, तो क्वार्टर फाइनल में हारे थे, सॉरी. तो 96 के वर्ल्ड कप में आई फेल इन लव विद क्रिकेट, एंड देन यहाँ आ गए. यहाँ पे क्रिकेट खेलने का मौका तो मिला नहीं, बट आई ऑलवेज लाइक फॉलोड इट वन वे और द अदर. तो मेरा जो फेसबुक पेज है, माय फेसबुक पेज, एक तो मुझे हर बंदा कहता है भाई वेरीफाई कैसे कराया. मेरा फेस, बिकॉज आई वाज इनटू मीडिया टीवी, 2015 में 8 साल पहले मेरा फेसबुक का पेज वेरीफाई हो गया बाय इटसेल्फ. ओह माय गॉड. तो मैं, हाँ थैंक यू. तो मैंने उसके बाद फेसबुक 15 से लेकर 21 तक 6 साल मैंने उस पेज पे शायद 6 महीने में एक पोस्ट डाली होगी. आई वॉज जस्ट समहाउ, सोशल मीडिया गेम वॉज डेड. तो क्योंकि मेरा पेज वेरीफाइड था, मैंने एक दो बार आईसीसी या क्रिक इन्फो की वेबसाइट पे जाके ना, जैसे कोई आर्टिकल आते थे इनके फेसबुक के, मैंने कमेंट कर दिया कि जी कोई कंग्रेचुलेशन बाबर या वेल डन कोहली या ऐसा कुछ. तो बिकॉज माय पेज इज वेरीफाइड, आपका कमेंट हाईलाइट चला जाता है. तो इफ एनीबॉडी गोज ऑन टू द पेज, तो मैं जो देखा कि मेरे कमेंट पे लाइक्स आने लग गए, एंड देन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग मी बिकॉज आई पुट अ फनी कमेंट और समथिंग. तो मुझे लगा यार ये बड़ी अच्छी चीज है. तो मैंने अपने पेज पे जब मैच हो रहे तो कोई ऐसे कोई स्कोर शेयर कर दिया, या कोई ऐसे शेयर दिया कि यार सरफराज की कैप्टनसी यार, या कोई पीएसएल की बात कर दी. तो आई स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ दैट. तो मैंने कहा कि नहीं यार इज बेस्ट हो गया. तो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग अटेंशन, जैसे कोई चीज होती है, आई स्टार्ट पोस्टिंग मोर एंड मोर, नॉट नेसेसरली वीडियोस ऑफ मी स्पीकिंग अबाउट क्रिकेट, वो कम है, बट मोर लाइक मीम्स स्लैश माय ऑब्जर्वेशन ऑन द गेम, कि वेल डन बाबर, या वेल डन ये, वेल डन वो. और उसकी वजह से आई हैव डेवलप्ड a small family of 200,000 people on Facebook. Amazing. Majority from Pakistan, India, Bangladesh. But 90% of them just want me to put cricket stuff on there. And my Facebook is just about cricket. और बहुत सारे उन लोगों को लगता है, they don't know I'm a real, they say कि they don't know what I do here. उनको, a lot of them think कि I'm just some random guy, you know, who just उसके पास यही टाइम है कि क्रिकेट की चीजें पोस्ट करता रहता है. वो अभी 6 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं पोस्ट किया, you know, just been busy. तो it's just my passion, and it's just nice to, you know, to have people who share similar interests, कि आप कुछ पोस्ट करेंगे, कोई कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है, ये वो थोड़ी सी नोक झोंक. तो उसमें अब मैं कॉमेडी एलिमेंट भी ला रहा हूँ, कुछ रील्स, फनी रील्स, वीडियोस, ये वो. बट माय फेसबुक, एंड सो दैट कंटेंट इज जस्ट क्रिकेट, नथिंग एल्स. आप इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, तो अब जब वर्ल्ड कप आ रहा है अब जी अक्टूबर में इंशाल्लाह, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप से पहले दोस्तों आ रहा है एशिया कप, और एशिया कप इस वक्त हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है, थैंक्स टू सेठी साहब. अगला वहां पसूड़ी नु अगला वहां पसूड़ी नु, यानी उनकी बेटी की शादी नहीं हुई, बाय द वे, काम डाउन. हाँ, अली सेठी said he is not married, guys, chill. I think you look a lot like अली सेठी. कभी किसी ने कहा आपको? Without the beard, yes. कहा है ना? With the beard, आतिफ असलम people tell me. लेकिन अली सेठी कहा है ना? हाँ, ठीक है. अगला वहां मैं अगला मां मजबूरी नु पसूड़ी नु नहीं, पसूड़ी तो गाना है, पसूड़ी नु अगल आ दोगे तो गाना किथे रहेगा? आन जान दी. अच्छा, तो आई थिंक हाँ, सो क्रिकेट एशिया कप आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आधा पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, एंड देन देयर इज द वर्ल्ड कप. तो मुझे लगता है इज ग्रेट, क्योंकि वनडे क्रिकेट को हम बड़ा मिस कर रहे थे. T20 बहुत चल रहा है. सो इट्स गोना बी इन इंडिया. लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था 2011 में, जो कि इंडिया ने जीता था. बट उम्मीद करते हैं कि अच्छा वर्ल्ड कप होगा. और टीम पाकिस्तान के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड ये हूँ कि हमारे पास यंग लड़के हैं. एवरेज एज जो टीम की है वो कोई 25 या उससे अंडर है. बाबर इज़ अ यंग कैप्टन. सो आई फील कि पिछले सालों में जब हमने वनडे में जो अपनी टीमें भेजी हैं,
there was always this factor, लेकिन these guys are fearless. So चाहे ये ना वर्ल्ड कप जीतें, I think they're gonna do well. दो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ आईसीसी का, एक का हम फाइनल हारे हैं अपनी गलती की वजह से, थैंक्स टू मैथ्यू वेड, और एक का सेमीफाइनल हारे और एक का हम फाइनल हारे. सो पाकिस्तान हैज डन रियली वेल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, व्हिच इज कमेंडेबल. और वो एक जो शैकल होते थे ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो वहां से मौका वो मौका को जो बाबर और रिजवान ने दुबई में ठोका है ना, उसके बाद से ना वो जो वहां से क्या कहते हैं, वो जो बुलिंग होती थी या वहां से जो ट्रोलिंग होती थी मीडिया चैनल्स की तरफ से, वो रुक गई है. इंडियन फैंस और इंडिया का जो मीडिया है वो अब पाकिस्तान टीम को इज्जत देते हैं. दे डोंट ट्रोल अस लाइक दे यूज्ड टू. दे थिंक कि हाँ, पाकिस्तान ने जो पिछले 2 साल में हमारा इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड है, they think कि टीम पाकिस्तान can do, they're capable of beating India as much as anybody. You think that one innings जो कि बाबर और रिजवान ने खेली थी, that has literally changed the game. वो innings और वो मैच, क्योंकि वो सिर्फ बाबर रिजवान की नहीं थी, बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो that would go in history as like a game changer from Pakistani perspective. उसके बाद पिछले साल एशिया कप भी हुआ, surprisingly India didn't even qualify for the final. उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को एंड में हराया. तो वर्ल्ड कप में हम फिर लास्ट वर्ल्ड कप में हार गए थे, बट फाइनल किसने खेला था? नहीं, आपकी इंडियन क्रिकेट फैन से ट्रोलिंग होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जरा आप जो कंटेंट बनाते हैं तो गालियां और ऐसी बिहारी में गालियां, तमिल में गालियां, मुझे तो गालियां पड़ रही होती हैं. मैं हाउ डू यू कोप विद दैट? लंड के बाल. अच्छा, अगर आपने बोल दिया, मैं अगर बताना शुरू करूं ना कि क्या क्या किस्म की गाली इन्वेंट करके बताते हैं. मैं एक दो चीजें जरूर कहूंगा कि देखो, मुझे पता है फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे यंग लोग होते हैं, ब्लड होते हैं, तो मैंने एक और रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी कि वाई पाकिस्तान इंडिया, मैं हमेशा पीस की बात करता हूँ. मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इसको तो आपने डालना ही डालना है. देखो, मैं यूके में आके ना मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे ना आर्सेनल वाले ना, लंदन में फुटबॉल क्लब है, आर्सेनल ना चेल्सी को पसंद नहीं करता, चेल्सी वाले ना टॉटनम को पसंद नहीं करते. ठीक है, वो बाकी क्रिस्टल पैलेस को पसंद नहीं करते, पैलेस वाले वेस्ट हैम को पसंद नहीं करते. ये एक ही शहर के, डिफरेंट मुल्क नहीं, एक ही शहर की 4-5 टीमों के नाम है. जैसे आपका इंडिया में हो गया सीएसके वाले हो गए या आरसीबी हो गए, ये आपकी आपस में क्लैश होते हैं. तो जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की बात आती है, तो अगर हम कोई इंडियन कोहली के बारे में या बुमराह या उसको हम जो भी हम कोई मजाक करें या कोई ट्रोलिंग नहीं कहूंगा, कोई मस्ती करें, तो दैट डजंट मीन कि आई एम ट्रोलिंग इंडिया एज अ कंट्री और सेइंग थिंग अबाउट इंडिया. उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए. इट्स जस्ट स्पोर्टिंग बैंटर. जब आर्सेनल वाले चेल्सी वालों के साथ इतनी बकवास कर सकते हैं एक ही मुल्क में रह के, एक ही शहर में रह के, तो हम इंडिया पाकिस्तान में अगर आपस में, उसको हम कहते हैं नोक झोंक कह सकते हैं. उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए कि तू इंडिया का दुश्मन है या तू इंडिया के बारे में ये बोलता है. नहीं, इंडिया इज अ कंट्री दैट्स सेपरेट, क्रिकेट इज सेपरेट, and Modi is separate. Modi is Indian Prime Minister, but he is not India. He doesn't represent everybody. And I believe कि पाकिस्तान और इंडिया में पीस होना चाहिए. फादर सन डिबेट है जी, बाप तो बाप ही होता है. आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की वजह से ज्यादा होती है प्रोवोकेशन, या इंडिया की तरफ से होती है क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री के अंदर? और आई थिंक वो भी यही हुआ था कि अगेन बाबर रिजवान उस इनिंग से पहले वो क्या होता है कि वहां से भी हरभजन हो गया, सहवाग हो गया, गौतम गंभीर हो गया, वो ऐसे कमेंट्स आते थे कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है. वो सबके मुंह बंद करा दिए वो सीनिंग्स ने. ठीक है ना, दे डोंट डू दैट एंड आई थिंक इट्स टाइम टू ग्रो अप. मैं ये सिर्फ चाहता हूँ, देखो, आई वांट पाकिस्तान इंडिया टू प्ले मोर क्रिकेट. ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि द रीजन आई वोंट से आई एम एंटी मोदी, बट यू कैन से आई एम वेरी एंटी मोदी. क्योंकि यार देखो, that was nice. ठीक है, उन्हें वो इसलिए, नो ऑफेंस टू माय इंडियन फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो इसलिए कि यार अगर आपने पाकिस्तान के साथ, आपके नेबर्स हैं, अगर आपने, देखो आपके कोई पड़ोसी होते हैं, अगर आप उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दो ना, आप उनके साथ क्रिकेट खेलो ना, आप उनके साथ कोई, यानी कि मुझे लोग कहते हैं कि सलमान भाई आप इंडिया कब आओगे परफॉर्म करने. मैंने बोला यार जब आतिफ असलम और राहत नहीं जा सकते तो मैं कौन होता हूँ. ठीक है, अच्छा, वाकई? जी, they can't go there. No, but they built their career over there. But since 2016, after Modi ji, they can't go.
ठीक है। Oh no. पाकिस्तान के कमेंटेटर्स वहां होते थे, वसीम अकरम वगैरह। वसीम अकरम यूज टू, वो जो शाहरुख की टीम है क्रिकेट, उसका वो बॉलिंग कोच भी होते थे। तो ना आपने हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलनी, कोलकाता नाइट राइडर्स, ना आपने हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलनी, ना हमारे सिंगर्स वहाँ, ना अली जफर और फवाद खान वहाँ की फिल्मों में काम कर सकते हैं। तो जब आपने एलियन और न्यूज चैनल पूरा दिन बैठ के पाकिस्तान के आतंकवादी ने, आई नो उसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ ट्रुथ भी होगा, बट मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑब्वियसली द हिंदुत्व मूवमेंट इज ऑन द राइज। तो अच्छा, बाय द वे, ये सब बोलने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इज एन अमेजिंग बेस्ट कंट्री और हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं, वी हैव इक्वल प्रॉब्लम, वी हैव प्रॉब्ली मोर प्रॉब्लम्स। तो ये नहीं कि मैं एक साइड ले रहा हूँ दूसरी साइड नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सब चीजों को भूल कर अगर हम पीस और हार्मनी की बात करें, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ खेलें, एक दूसरे के घरों में जाएं, तो जो लोगों का पीपल टू पीपल प्यार है, मोहब्बत है, दैट्स नेक्स्ट लेवल। आप लोगों को, इंडियन लोगों को यहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान को मिलते हैं, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता टीम लेके? ये इतने जो मसले चल रहे हैं यार, इंडिया वाले कहते हैं कि क्रिकेट के वो ठेकेदार हैं। इंडिया रन्स आईसीसी, इंडिया रन्स क्रिकेट, क्योंकि सारा रेवेन्यू इंडिया से आता है। तो वो दे कैन डिक्टेट हाउ दे वांट, और उनकी गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। क्योंकि अगर मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने लग जाए, लोग इंडिया से पाकिस्तान मैच देखने आ जाएं और वो देख लें कि पाकिस्तान वाले उनको कितना प्यार करते हैं, लोग दुकानों में उनसे पैसे नहीं लेंगे, तो इनका जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फॉल्स डाउन। आतिफ असलम या आपका अली सेठी आके इंडिया में आके पसूड़ी गाना गा ले, जो इंडिया में नंबर 1 रहा ऑन द चार्ट्स फॉर सो लॉन्ग, अगर वो आके कॉन्सर्ट कर लें और लोग क्रेजी हो जाएं, उसके गाने वहां पे सुने, तो पाकिस्तान का तो पॉजिटिव मैसेज जा रहा है इंडिया में। दैट्स नॉट फिटिंग देयर नैरेटिव, व्हाई विल दे अलाउ दैट? Do you think there are powers who don't want peace to happen? 100%, 110%। and I think मैं एक बात कहूंगा कि आप किसी भी इंडियन जो मेजर न्यूज चैनल की डिबेट्स उठा के देख लो, इट्स गोना बी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, ठीक है, एंड देन समथिंग एल्स। पाकिस्तान के न्यूज चैनल उठा के देख लो, अल्लाह की कसम, रेयरली स्पीक अबाउट इंडिया। हाँ, वैसे ये क्या है हमारे रेयरली स्पीक अबाउट इंडिया, क्योंकि देखो वो पॉलिटिकल इंडिया में वो एंटी पाकिस्तान। अब इंडिया की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है पठान, ठीक है, जून में, जो कोई नई स्टोरी नहीं है। मैंने पठान फिल्म ऑब्वियसली पायरेटेड ऑनलाइन खोली, फर्स्ट सीन में पाकिस्तानी जनरल कहता है अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं कहा पैन चो, एक तो जनाब नहीं खत्म होता इनका। यार, आई हैव नेवर सेड जनाब इन माय लाइफ। ये और उसके बाद सेकंड बिगेस्ट फिल्म दिस ईयर इज गदर, एक प्रेम कथा। यानी कि 65 ईयर बुजुर्ग सनी देओल, उनको जोश चढ़ गया है कि वो पैंचो लाहौर आके ना एक और पंप उखाड़ने आ गए हैं, एंड ऑडियंस इन इंडिया इज गोइंग क्रेजी, दिस मूवी इज गोइंग एज अ ब्लॉकबस्टर। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। मुझे लगता है कि ना कहीं हमारे जो इंस्पिरेशनल स्टार्स इन इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है कि कंटेंट के अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट डालेंगे तो चलेगा। यार, इट सेल्स। हर अदर फिल्म, उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये जितनी फिल्में हैं, अभी एक आई थी द कश्मीर फाइल्स, घटिया फिल्म थी, प्रॉपर प्रोपेगेंडा था, बट इट डिड वेल। एक आई थी अभी द केरला स्टोरी, कि केरला में कैसे 36,000 गर्ल्स ने जाके आईसिस ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की, दिस इज नॉट मी, दिस इज इंडियन मीडिया, प्रॉपर रिसर्च के बाद पता कितनी निकली? 2। अच्छा, 2। so they exaggerate। 36,000, 2, ठीक है, एनीबडी कैन चैलेंज मी ऑन दैट। तो मैं नहीं कह रहा कि अच्छा पाकिस्तान में सारे बड़े दूध के धुले या हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ये वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, वी हैव मोर प्रॉब्लम्स। हमारे पास तो बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम्स है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं हमारा पूरा हो रहा, हम क्या इंडिया से कंपीट करेंगे? इंडिया चांद पे चला गया है, इंडिया इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो आई एम इंस्पायर्ड बाय इंडिया, इट्स लवली। लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली या ये जो आरएसएस वाली या बीजेपी की जो सोच है, इट्स गोना टेक इंडिया टू डार्क एजेस, इफ नॉट नाउ, sometime in the future. I mean, they're very much in power now in India. They're very much in power. लेकिन ये होता है कि वो वो हमेशा से रहा इस दुनिया का, कि कोई भी हमेशा किसी का भी अरूज हमेशा से नहीं रहा, so it's gonna come down one day, Don't you think कि पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक जो कि रिलीजियस आइडियोलॉजीज की बेस पे बने हैं और प्रमोट भी किए जाते हैं,
इनके अंदर रिलीजन विल ओनली डू मोर बैड देन गुड। 100%, क्योंकि अब मैं इंडिया की बात करूं, कमिंग बैक टू पाकिस्तान नाउ, यू नो, आप रिलीजन कार्ड खेल के किसी पे भी ब्लास्ट करवा दो, यू नो, किसी को भी मरवा दो। अभी पाकिस्तान में उन्होंने फिर एक क्रिश्चियंस का चर्च जला दिया है। शॉकिंग। दे कीप बर्निंग डाउन। हाँ, तो वो हमारे लिए बड़ा इजी है बोलना कि देखो कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, देखो ये। और हम लोग, हाउ डू वी ट्रीट माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री, हाउ हम उनको क्या इज्जत देते हैं, हम उनके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू से कि इंडिया इंडिया इंडिया, नहीं, वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम, वी हैव एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन मैं एक ओवरऑल क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि वहां पे इंडिया रन्स द थिंग्स, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ जाए और वो यहाँ आके खेलना शुरू हो जाए, देन वो नैरेटिव नहीं बैठता कि आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के साथ प्यार और मोहब्बत का मैसेज दे रहे हो। तो मैं तो एज ए क्रिकेट फैन, हमें दुख होता है ना कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि यार कोहली लाहौर आए, हम भी चाहते हैं कि शर्मा कराची आए, वहाँ सी व्यू पे लेके जाएं उसको। तो 90s के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, या अगर आप इंडिया से पूछो, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो इंडिया गए हैं, बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिलता है उनको। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे द गाय कॉल्ड वाइल्ड लेंस विद अबरार भाई, जो पूरे इंडिया का टूर करके आए हैं, साउथ टू नॉर्थ, इतना मोटरसाइकिल वाले, यू शुड वॉच हिम। तो उनको, अबरार भाई को इतना प्यार मिला है वहां पे इंडिया में, और you should watch some of his videos. I have been following him for a long time. वो वाघा बॉर्डर से जैसे मोटरसाइकिल से गुजर के क्रॉस करके आए। अब देखो कि तो वो सब बड़ा अच्छा है, and obviously he's Pakistani, he's from near Faisalabad as well. I think he's from Nankana Sahib himself. Yeah. तो लेकिन आपको पता है वो सब कैसे पॉसिबल हो चुका? कैसे? He has a German passport. तो यानी कि कितनी आयरॉनिक बात है कि एक बंदा he had to be German to be able to do it. लेकिन अगर उसके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, वुड बी नेट इम्पॉसिबल। यानी कि अबरार भाई की जर्नी से हमें सबक मिलता है कि अगर आपने अपने पड़ोसी मुल्क में जाना है तो आपने सीधा डायरेक्टली नहीं जाना, पहले आपने कहीं और जाना है, यूरोप में, वहां जाके आपने पासपोर्ट लेना है ताकि आपको घुसने दें इंडिया में। और इस पॉडकास्ट के बाद मैं तो नहीं घुस सकता। नहीं, मेरे ख्याल से आप तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। It's still difficult if you're born in Pakistan. So, ना करो। it's not that easy. एक सेकंड, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर ILR और पासपोर्ट लेके इंडिया जा सकता हूँ। It's gonna be tough. अगर वो शायद कोई वर्ल्ड कप की वजह से वीजे खोल दें, that's a different story. My good friend Atif Nawaz had some shows booked in India 5 years ago. Atif wasn't born in Pakistan, probably never lived in Pakistan. His parents are from Pakistan, and I think they made him wait 8 months, and then he just gave up. तो अगर आपका ग्रीन पासपोर्ट हो in the history as well, जी, वो उनकी फॉर्म पे लिखा होता है कि आपका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। डोंट टेल मी, आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे यूएस का वीजा ले सकते हैं ऑन द स्पॉट जी, लेकिन आप इंडिया का नहीं ले सकते। यू हैव टू अप्लाई, दे असेस यू, दे वो रिसर्च करेंगे आपके वो, एंड दे विल प्रोबब्ली ड्रैग इट फॉर यू, बट इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं मिल सकता, आई एम श्योर सम पीपल गेट इट, बट इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड रेयर टू गेट दैट। या दैट्स बैड मैन, दैट्स बैड फॉर क्रिकेट, दैट्स बैड फॉर पीपल जो उधर जाके व्लॉग करना चाहते हैं, कॉमेडी करना चाहते हैं। आपने पाकिस्तानी देखे जो गए हैं, अगर गए हैं, they have some other passport. Oh my God, man, that's a revelation. चुम्मे जो पठान। Good man. I wanted to talk about the conspiracy theories. Come on, man. कल रात को हम बैठ के बात कर रहे थे, and I got to know Salman in a totally different aspect of his life. He believes in a lot of conspiracy theories. Conspiracy theories is something mainstream media or mainstream generally they don't accept it. So just because they don't accept it, they say कि ये conspiracy theory है, but that doesn't mean it's not true. How are you so confidently holding some unpopular opinions and still be fine with it? Unpopular opinion, just for the sake of it. तो एक conspiracy theory जो unpopular opinion I believe in is कि I believe man has never landed on the moon. एक सेकेंड, होल्ड दैट, मैन हैज नेवर लैंडेड ऑन द मून। अभी आपने मुझे पिछले टॉपिक में बताया कि आई एम इंस्पायर्ड बाय इंडिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। तो जब आप जब इंडिया चांद पे पहुंच सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं पहुंच सकता चांद पे? इंडिया चांद पे पहुंचा है, लेकिन इंडिया का कोई बंदा नहीं चांद पे नहीं पहुंचा, बस। ये आप बेसिकली प्रोवर्बियल सेंस में कह रहे थे। हाँ, मतलब सैटेलाइट पे चले गए हैं, यू नो, बेसिकली इंडियन स्पेस सिस्टम जो भी। सैटेलाइट करीब ही होती है चांद के? नहीं, हम लोग पाकिस्तान में हम सिर्फ एंटीना ठीक कर सकते हैं ऊपर खड़े होकर। नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि कभी कोई इंसान
चांद पर नहीं कदम नहीं रखा उसने। उसके पास तक गया। नील आर्मस्ट्रांग जो था, ये मोची था वहां पे अमेरिका में। नहीं था। मोची ने दर्जी जरूर था। आई जस्ट फील कि देखो एक लॉजिकल एक सेंस बात होती है, ठीक है। एक तो हमने एक चीज मैंने नोटिस की है यूके आके भी और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि, और मैं मीडिया में भी काम करता हूँ, न्यूज़ चैनल से भी मेरा ताल्लुक रहा है कि आई बिलीव कि जो आपको हमेशा दिखाया जाता है चैनल्स पे या इधर उधर, वो वही नैरेटिव होता है कि जो गवर्नमेंट आपके गले में घुसाना चाहती है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो सी होती है वो डिफरेंट टाइमों पे उनके डिफरेंट मफादात होते हैं। जैसे कि इस कंट्री ने, यूके ने, जब इराक वॉर पे जाना था तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मीडिया में चीज़ें फैलाई गई जिसमें बताया गया कि जी अगर हम इराक नहीं गए ना तो इराकी यहाँ पे आके ना हमें ख़त्म कर देंगे। एंड देन दे वेंट टू इराक, इन्होंने वो कंट्री डिस्ट्रॉय करके रख दी, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, एंड देन दे सेड सॉरी वी डिड नॉट फाइंड एनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। योर सॉरी आई एम अफ्रेड इज नॉट गुड इनफ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चांद पे हमें बताया जाता है, बचपन में हमने स्कूल की किताब में कि उर्दू में नील आर्मस्ट्रांग गए थे कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन विद बज लाइटईयर जो भी उसके साथ गया था। दे गॉट देयर एट द मून इन 1969, ठीक है, वहां पे नासा वाले चले गए थे, ठीक है। तो और बाय द वे डू यू नो कि सिंस देन दोज वर द ओनली गाइज हु स्टेप्ड फुट ऑन मून। उसके बाद कोई नहीं गया आज तक। तो आपको लगता है कि चूंकि कोई बंदा दोबारा नहीं गया उसके बाद? वो भी एक बात है। बात यह है कि 1969 में मेरे भाई ना आपके पास स्मार्टफोन थे, ना आपके पास इंटरनेट था, ना आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना आपके पास व्हाट्सएप था, आपके पास स्नैपचैट भी नहीं था तब, ठीक है, आपके साथ कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड ऑन रैपिडली सो मच, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वॉर्स फंड करने के लिए, बट तब से अब तक 50 से 60 सालों में दे हैव नेवर स्टेप्ड ऑन मून। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे यूएसएसआर, रशिया और अमेरिका की कोई कोई ये स्पेस वॉर चल रही थी कि कौन पहुंचता है, कौन क्या करता है, एंड इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेप बाय जॉन एफ कैनेडी। लेकिन इंसान आज तक मून पे नहीं गया, वरना अब ना वहां पे ना लोगों ने पौना डिफेंस छता होता, वहां पे हॉलिडे रिजॉर्ट होते हमारे, कुछ ना कुछ शुगल होता। नहीं तो एलॉन मस्क जो कह रहा है कि मैं वहां पे एक हाउसिंग कम्युनिटी बनाऊंगा। यार जिस बंदे से ट्विटर नहीं चलता वो साला होते हाउसिंग कम्युनिटी बनाएगा, रहने दो, माफ करो यार। उसने ट्विटर नहीं चलाया, उसने इतनी चीजें, पेपैल चलाया, उसने स्पेसएक्स चलाई है, उसने रॉकेट बनाया। बोला कि भाई तू अपनी जो खाली खाली गाड़ियां होती है ना, आई लाइक द कार्स दो, अभी आई कुड अफोर्ड। आर यू गोइंग एट वॉर विद एलॉन मस्क? एलॉन मस्क आइडियोलॉजिक नहीं, पता क्या, मैंने एक उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जहां पर ही डिड हिज 4 एक्सपेरिमेंट्स रॉकेट बनाने में। आई माइट बी टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन उसका जिस्ट ये था, समरी ये थी कि ही वाज सेइंग कि जब मेरा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट में मुझे फेलियर हुआ तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिनकी स्पेस रिसर्च बहुत ज़्यादा थी। नील आर्मस्ट्रांग वाज इन दैट बोर्ड दैट वीटोड फॉर द फंडिंग डिसीजन टू एलॉन मस्क के इसको दोबारा से फंडिंग की जाए। तो ही वाज सेइंग, एलॉन मस्क वाज सेइंग कि मुझे अफसोस है कि मेरा चाइल्डहुड हीरो जिसके मून एक्सपेडिशंस इतने मशहूर हैं, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर होता था कि आई वांट टू गो टू द मून, उसने मुझे डिस्करेज किया एंड इट हर्ट्स अ लॉट। आई डोंट नो, आई मीन इट्स, एक तो इन लोगों को तो my question is, you don't know whether you take them seriously or not. No, I mean, oh my God, the whole world take them seriously. आपको लगता है कि इलॉन मस्क को अगर पता लग गया हो कि अमेरिका ने सारी ये चीज कहानी बनाई थी और वीडियो इफेक्ट्स थे मून पे जाने के, तो चुप करके बैठा होगा वो? नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इसको पता हो एंड ही इज लाइक कि चलो वो नहीं जा सके, मैं जाऊं। मैं नहीं कह रहा कि आइंदा कोई जाएगा नहीं, मुझे लगता है कि दे हैवंट बीन जस्ट येट। they may have technology to go now, they probably should, but they haven't been there yet. और एक और चीज है कि ये कोई थ्योरी मेरी निकाली भी नहीं है। Obviously I've seen some clips and documentaries and stuff which kind of indicate, जिसमें नासा के अपने लोगों ने बात की है। तो ये नहीं कि मैं खुद मुंह उठा के बोल दिया कि जी नहीं गए। And then when you analyze those things, it does make sense. मैं तो एक बहुत बेसिक आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो this is how I feel कि इतने सालों के बाद भी I don't think they've been there. आपको लगता है इलॉन मस्क भी एक सब पूरी दुनिया को झंडी करा रहा है? हो सकता है वो नहीं, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं जी। बिक गई है गवर्नमेंट। Seriously, you believe that? I mean, this belief doesn't affect my life, but अगर आपको लगता है कि क्या आपको लगता है चांद पे कोई गया होगा, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, how about if Earth is round or flat? नहीं, वो राउंड ही है। Why? वो तो फोटो देखी मैं। तो वो जो ऊपर से फोटो आई है वो
आपके अब्बू ने तुझे नहीं जाके ली, वो सैटेलाइट से ली है। तो जब सैटेलाइट इतनी दूर जा सकती है तो चांद पे भी जा ही सकते हैं। सैटेलाइट से थोड़ा दूर है चांद। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो पड़ोसी हैं, लेकिन आप मतलब व्हाट इज योर बेसिस ऑफ दिस? यू नो सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट तो क्या था कि सैटेलाइट में तो देखो ना इंप्रूवमेंट हो रही है ना उसमें। देखो आप देखो सैटेलाइट पहले इन्होंने जी जो भी ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर आया, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपके पास कितना कुछ आ गया। सैटेलाइट के थ्रू आप अटैक्स कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, बेहतर होता गया। लेकिन चांद वाला डिक्रीज हो गया, यानी कि आप चांद पे चले गए। नेक्स्ट थिंग अब आपको जुपिटर पे और वीनस पे जाना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई ना, अब हम 50 साल में चांद पे नहीं गए। तो वो जो टेक्नोलॉजी वो बेहतर होती गई ओवर द इयर्स, पर ये यू जस्ट लेफ्ट इट देयर। तो हाउ अबाउट मार्स? एलॉन मस्क जो कह रहा है वो मैं मार्स पे जाना है। मस्क को छोड़ दे, तुझे लगता है कोई ज्यादा कोई पर्सनल फैनशिप है आपकी उनके साथ में? नहीं, पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं है, बिकॉज यू आर दिस इज वेरी अनपॉपुलर एंड आई मीन 90% ऑफ जो मुझे लगता है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ ना, मेरा कोई स्पेस एक्सपेडिशंस में कोई मेरी पीएचडी है, लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन, सोशल ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली मैंने मीडिया से ही कंज्यूम किए हैं सारे। लेकिन आप उन तारे तमाम मीडिया के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के खिलाफ जाके बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू माइट बी राइट बट आई डोंट थिंक यू आर राइट। नहीं यार, अपना ओपिनियन है। आई जस्ट फील के मुझे नहीं लगता कि वो गए हैं, एंड आई वुड लाइक देम टू गो। अगर जाएंगे मेरे भी नाल ले जाओ। नहीं, आप मुझे कल ये भी कह रहे थे, आपको लगता है 9/11 के हिसाब से भी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है अमेरिका? यार वो तो एक बच्चा बोलता है ना, लाइक दैट्स अ लॉन्ग वन। दैट्स अ लॉन्ग वन। उसमें मतलब आप मतलब उसके अंदर आप डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे? It's a very long one, you know. I mean, it's in 2 lines, you know. You can't imagine के you know दुनिया की इतनी बड़ी कंट्री जिसका इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है, 10-15 cavemen from अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, वो मिल के वहाँ पे इतना सिंक्रोनाइज स्पेशल अटैक करें, और the next minute you're in Afghanistan, you're invading the country and all of that. Bro, there are so many. उसके लिए ना पूरा शो है, आपके बना सकते हैं। I can give it to you a whole show. Okay, we can do it another time. So, you sound like an anti-vaxxer. नहीं, I took vaccine. You took vaccine? Why? Because वो fly करना था। उसके बारे में इतनी conspiracy theories हैं। I think some of them are pretty valid. लेकिन मुझे लगा कि it doesn't affect my life. The more I think about it, it's gonna go. Things like 9/11 does affect my life. Because how? Because we are Muslims. एंड क्योंकि 9/11 और 7/7 जो यूके में हुआ था, उसके बारे में मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि वो ओवर द इयर्स दैट हैज गिवन बिग राइज टू इस्लामोफोबिया, नॉट जस्ट इन अमेरिका, अक्रॉस द वर्ल्ड। मुस्लिम ये जो द वर्ल्ड जिहाद, द वे इट्स बीन मैनिपुलेटेड इन द मीडिया, एंड इस्लामिक टेररिज्म, जबकि दुनिया में ज़्यादातर टेररिज्म इज गो नथिंग टू डू विद इस्लाम, डन बाय ईदर nationalist or people from other religion. लेकिन इस्लामिक टेररिज्म और इवन विद इन कॉमेडी, अगर आप कोई बॉम्ब की बात करें या अल्लाह अकबर की बात करें, इट्स जस्ट सीन इन अ वेरी डिरोगेटरी वे, तो इट डज इफेक्ट मी। दैट्स व्हाई एंड उस सब का वो कहते हैं ना, जन्म कहाँ से हुआ या कहाँ से उसको लाइट मिली, इट हैपेंड फ्रॉम 9/11। इसलिए it is important for you to hold an opinion on that. To hold an opinion and then for others to know कि अगर 9/11 जैसी डेलिकेट चीज ये लोग खुद करवा सकते हैं, भाई ये लोग, यू कैन कॉल इट द गवर्नमेंट, द सिस्टम, whoever, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, सब माया है, सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं जी। तो लेकिन 9/11 तो एक ऐसा ओपिनियन है कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन, अगर अमेरिका में कितनी दफा सर्वे हुए, इवन दे नो दिस। यू कैन जस्ट नीड टू यूज योर लॉजिक। आप उनके रैंडम गवर्नमेंट, मतलब who believes the government anyways, चाहे पाकिस्तान की हो या nobody. गवर्नमेंट आपको एक नैरेटिव ठूस रही है कि जी लोगों ने आगे यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ वो कर लिया। Come on, this is the time of day and age technology. You don't need to buy that bullshit. Really? Okay. Coming to you specific question, अगर आप कॉमेडियन ना होते तो आपका एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन क्या होता? मुझे नहीं पता मैं क्या होता, because I have never been that ambitious. लेकिन अगर मैं अभी कॉमेडियन ना होता, then I would be probably in the field of dawa. Dawa means like religious invitation. Yeah, religious invitation. I think I should still do it. Maybe it's not an excuse, because Allah has given me the talent to speak. So I'm a Muslim. I'm not a very practicing Muslim as much as I would like to be, but I believe in Islam. I believe Islam is a way of life which works. And as you see, it's the fastest growing religion in the world. And millions of people who are not from the faith are moving into, because उनको life में
you know, a lot of people I see who revert back to Islam. We don't say convert, we say revert. तो उनको जो होता है ना कि जिंदगी भर लोगों के ज़हन में क्वेश्चंस होते हैं, वो उनका जवाब उनको इस्लाम में मिल रहा है. And then हम लोग, people like me, who are born in Muslim household, we take Islam for granted. क्योंकि हमारा बाप मुसलमान था तो हम मुसलमान हैं. नहीं, I think कि even if you're born Muslim, no matter what sect you follow, although I believe there is no sect, there's only one sect, you're just Muslim. लेकिन मुझे लगता है कि we should still read Quran and Quran with tafsir, you know, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ने आपको कहा क्या है, rather than just be a parrot and just read it and then कि हाँ जी हमने कुरान पढ़ा हुआ है. So I think reading with tafsir and understanding the hadith and the authentic saying of Prophet Muhammad is very important, sallallahu alaihi wasallam. So yeah, I'm going for Umrah next week. I'm so emotional. So you're performing in Saudi Arabia, and I think in that same tour, you're performing an Umrah. Mashallah, good luck with that. And I'm planning to make some social media stories, perhaps a vlog as well, where, you know, just to show people, you know, Saudi Arabia from my eyes, and to probably walk the same roads and same path as our beloved Prophet did. And I really want to go to this cave. It's called Ghar Hira. So when our Prophet sallallahu alaihi wasallam was 40 years old, मैं बचपन में गया था वहाँ पे. I'm so excited and fantasize about this place कि there is this cave on top of a mountain. So this 40-year-old man who is seen as a great man in his community, he's सादिक and अमीन, लोग उन पे ट्रस्ट करते थे, ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, ये बड़ा सच्चा है, ये पैसे के मामले में बड़ा अच्छा है. So this guy, he goes, you know, he feels a bit empty, he feels a bit lost. And then he goes to this cave every other evening and he meditates there and he goes there और अपने ख्यालों में उनको लगता है कि I think something is not right. And then all of a sudden he's there one evening and then an angel appears who we say is Jibrail. And then obviously imagine आप एक गार में isolated जगह में और आपके सामने कोई, I don't know how to describe it, you know, an angel appears or something unusual appears. So he was shaken, he was shook. And then the angel shakes him and then it says Ikra in Arabic, and it says Ikra means read. And then Prophet Muhammad says ke, I don't know the exact word in Arabic, but he says I can't read. And then he shakes him again and says read, and he says read in the name of Allah, the merciful, you know, Allah who jisne hame ek us qatre se banaya, and then so and so. And then he gets shaken and he gets off the cave, goes down to his house, tells his wife about it. So I think it's just so beautiful that you can now go and see that actual cave. Jahan pe, this is the first revelation came to the Prophet, and he found out that he is a prophet and he is a special man from Allah. So you're inspired by that story. I'm very inspired by that part of the story and that part, that exact area. And I want to visit that next week. That fortifies your faith and drives you to the mission of Dawah, you say. Yeah, mission of Dawah just generally, because I believe, I think Dawah as well, because Dawah se ek aur cheez ke I just want to tell others, especially our Christian and Jewish brothers and sisters, ke our faith, especially the Abrahamic religions, we are so close and so similar to each other. We all believe in the same God, we all have mostly the same set of rules, but we have just slight, you know, differences. So wo agar hum differences ko understand kar lein, I think communally we can come closer and understand each other better. That's a very good thing, because I think पाकिस्तान से बाहर आके हमें थोड़ी अकल आती है इस बात पे कि maybe we should talk about the common things we have. Exactly. Why do you think कि पाकिस्तान के अंदर रह के हम इतना differences के बारे में focus करते हैं और यहाँ पे इतना common चीजों के बारे में? I think another good thing is because I grew up in Bahrain, which was already a very multicultural society. So, I never had that typical Pakistani mindset. So मैं already inclusive था. In Pakistani school, we had Indian teachers with South Indian accent. Yum, yellow, yo. अच्छा. Ayo. तो बहरीन में पाकिस्तानी स्कूल में थे, इंडियन टीचर्स थे. आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में स्कूलिंग करते जी, तो आपके अंदर ये इंक्लूसिविटी और टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन ना होती? Perhaps yes. Yeah. And why is that? Because obviously you're in the same set of people. That same applies to if somebody who lives in India as well. India में obviously there's more people from other religions etc. Pakistan is predominantly Muslim और एक अलग mindset में आप पैदा होते हैं. So I'm so glad that I grew up in Bahrain, where I was able to see people from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and that has helped me because I know and I like to explore. I like to know about different cultures. And then जब आपको कोई you know Tamil Nadu से मिलता है या कोई बांग्लादेश से मिलता है, and if you tell them something from their language or their culture or their city or something from what they do, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि यार तुम्हें कैसे पता?
I mean, Google का ज़माना है, anybody can find out. But it's always nice to know something from that place so you can hold a conversation with them. That's nice. As a father of 3 children, जो कि स्कूल जाते हैं obviously, तो अब आपको लगता है कि given a choice, you would like your children to be schooled in Pakistan or Bahrain or any other country, और क्यों और क्या वजह है? I think as a parent, आजकल, I'll be honest with you, I've noticed a lot of, I'm speaking on behalf of Muslim parents, Pakistani parents, कि a lot of people aren't very happy about bringing their kids up in the UK for several reasons. I don't want to go into it too much. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्कूल के करिकुलम में ऐड किए जा रही हैं which do go against our Muslim and Asian values, family values. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए so the experience they have here, जो learning है, जो facilities हैं, they are absolutely amazing. और उसके अलावा यहाँ पे you know they have the RE religious जो studies होती हैं, they teach them about all the religions, inclusivity के बारे में बताया जाता है कि कैसे आपको हर किसी की इज्जत करनी चाहिए. So I think that part of that is amazing. And because I have, you know, we live in London, तो जब weekend होता है, मेरी Mrs. she books it, I try to do that. We take them to museums, we tell them about history. So my son, bless him, he's 10, but he knows about, you know, history of Pakistan, he knows about China, he knows about, you know, different parts of the world. तो मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे UK में यहाँ पे they're very well informed about what's happening around the world and what other religions say या उनका क्या एक basic अकीदा क्या है. तो यानी कि जो पेरेंट्स की रिजर्वेशंस होती हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान से बाहर बच्चों को स्कूलिंग नहीं करवानी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो इफ यू वे बोथ द साइड्स यू विल स्टिल चूज टू बी वो क्या था जेड़े लो जेड़े ਇੱਥੇ पढ़े किसी लाहौर भी पढ़े. इस तरह कुछ है कि जिसने खराब होना है उसने कहीं भी खराब हो जाना. मतलब आई डोंट नो उस खराब की डेफिनेशन पर रिलेटिव है. दुनिया कहते हैं बड़ी सब्जेक्टिव सी है. खराब हो गया मतलब मैं भी अपने आप को खराब ही समझता हूँ. तो बट यू थिंक के पेरेंट्स शुड नॉट बी अफ्रेड of putting. I think it's about how you bring them up. I know it's tough here. There are a lot of things, you know, kids are being taught, which sometimes parents are not being it's not consensual by the parents. मुझे लगता है कि education में parents should have a right कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, और अगर parents चाहते हैं कि एक certain subject ऐसी चीज़ों को ना पढ़ाई जाए, then it shouldn't be put down their throat. उनको force नहीं करना चाहिए. That's my opinion. Okay. Thank you so much. We will be concluding it because thank you so much. I've taken a lot of your time, and thank you so much for holding that kind of a stamina to continue the conversation. You are amazing, Salman bhai. I have learned a lot from you, and you don't portray yourself as a big knowledgeable person because you're very modest. Moon की वजह से लगता है मैं थोड़े points done हो गए. नहीं, it's an honor because thanks for coming to this podcast. Thank you for having me, bro. It has obviously this conversation, the variety of topics you have touched, they are really inspiring. And one last thing, as a comedian, as a husband, as a father, as a UK citizen, you are doing very well, mashallah. Thank you. आप जो लोग शोबिज में आना चाहते हैं, चाहे वो देसी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो यूके के अंदर ब्रॉट अप उनकी हुई हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ टू थ्राइव इन द कॉमेडी सर्किट और एक्टिंग सर्किट और बिजनेस वाइज के क्या ये इतना लुक्रेटिव है? आपको क्या प्रीरेक्विजिट्स चाहिए होती हैं? वो बंदा क्या करे हु लुक्स अप टू यू एंड इज लाइक यार मैंने इस तरह का बनना है. आपने किस बंदे को देखा था और आपने क्या क्या एलिमेंट सोचे कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. एक तो आपकी डेडिकेशन है, आपका टैलेंट भी है, और थोड़ी सी आपकी किस्मत भी है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आजकल किड्स दीज डेज हैव वेरी इजी. आजकल वो कहते हैं टिकटॉक का ज़माना है. गॉन हमारे ज़माने में या अभी भी जब आपने यूट्यूब से क्या है कि आपको एक 15 मिनट की वीडियो डालनी है, उसमें ये है उसमें वो है. आजकल आप एक इंस्टेंटली कोई एक टिकटॉक पे वीडियो बना सकते हैं 15 सेकंड की, जिसमें let's just say perhaps minimal effort चाहिए, just more creativity, and then that could go viral. आप एक वीडियो से hit हो सकते हैं, and then it, you know, and that starts opening doors to other things or other ideas for you. So things are more easier, but yes, there is obviously more competition, so you gotta bring out something which is unique and different. तो अगर आपको लगता है कि you wanna be in there, you need to be dedicated and you don't have to let go. आप वो गाना तो आपने सुना होगा कि अपना टाइम आएगा.
So you have to keep going. अगर आपका पहले साल डेढ़ में कुछ नहीं होता तो that doesn't mean it's not gonna happen. आपका hustle चलता रहता है, you know. I've seen times, I've seen highs and lows. As I said to you, we used to do TV shows. तो वो popularity एक अलग ही level पे चली गई थी. So it can go up and up. फिर कुछ videos अब recently viral जा रही हैं. तो this will come and go. इसी तरह होता है कि जैसे कि आपको एक सनी देओल की एग्जांपल देता हूँ कि nobody cares about सनी देओल, लेकिन अब उसने जबरदस्त किस्म का एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनाया तो ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर दिस ईयर. तो आपका टाइम कभी भी आ सकता है. आई वुड से कीप गोइंग. एंड अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको पुट डाउन कर रहे हैं, जो आपको कहते नहीं यार तेरे को नहीं होना, ट्राई एंड इग्नोर देम, कट देम डाउन. ऐसे लोगों से आप दोस्ती करें. यू नो लाइक मैसेज एनीबडी, लाइक आपको लगता है जिसको आप फॉलो करते हैं, यू नो मे बी नॉट सो फेमस गाइज, वो लोग नहीं रिप्लाई करते. ट्राई एंड बी इंस्पायर्ड बाय दोज पीपल and try and have people who can give you the best advice for you. तो ये सब चीजें करके you can be Salman Malik. नहीं, you can do better than that. You can, I mean, walk on the pathway. तो I would say it's possible. It just depends कि आपके अंदर कितनी hunger है and how much passion you have for this. आप जब ये कहते हैं कि मेरा जमाना, आप अपनी उम्र बता सकते हैं? आप मुझे बताएं थोड़ा. मेरी उम्र हर जगह यार, मैं कहना कोई, मैं अभी मेरी उम्र 27-28 लग रही है. माशाल्लाह. मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ. यार मैं भूल जाता हूँ. He looks young. He is jumping all around in the shows. I'm 38. You're 38. And this guy acts like a 21-year-old. कभी No, all the time. मैं इनके साथ shows पे जाता हूँ. He is doing everything. चेयर लगाने से मतलब इतना ज्यादा स्टेचर का बंदा, कॉमेडियन, एक ऑर्गेनाइजर, अपना बिजनेस ओनर, यूके के अंदर एंटरटेनमेंट का बिजनेस चला रहा है, कुर्सियां भी खुद लगा रहा है और ऑडियंस मेंबर्स को डायरेक्शंस भी दे रहा है, टिकटिंग भी खुद कर रहा है हमारे शोज पे. I need to hire people. This guy is amazing. If you're looking for a job, let me know. I don't have money to pay you, but if you're looking for a job. If people want to get in touch with you at the end, so how can they do? Through social media, maybe Instagram. And yeah, so I think if you are into media, अगर आप एक artist हैं, singers, we didn't touch upon the singing, we can talk about another time. I work with some amazing talented singers, musicians, you know, Nafis Irfan Ahmed, to name a few. Okay. So I work with them. I try to get them very organized, which I have over the years. तो वो एक अलग ही side है. So if you are a singer and you need some advice about doing shows in the UK or performing here, I'll be happy to, you know. Good. You know, one thing we missed. हमारा comedy tour. यार इसमें plug कर. Oh my God! Just guys, we are doing a comedy tour. 5 cities in the first round: Manchester, Birmingham, South London, East London, Leicester. The dates are given in the description or in the caption. I'm doing this comedy tour with Salman Malik, and thanks to him for doing this collaboration with me. I'm really honored and learning a lot. Salman bhai, why should people come to our show? I think they should come to our show because to see 2 immigrants. To see 2 immigrants. I think you should come to hear some crazy stories. We'll have a lot of fun. I think it's just there's a lot of interaction with the audience. Or I think you should come to a show to support live stand-up comedy. When was the last time you went to a show where you had a great time? So with our shows, आपको वो देसी तड़का भी मिलेगा, आपको ब्रिटिश ह्यूमर भी मिलेगा, आपको बोले चूड़ियाँ भी मिलेंगी, आपको हर चीज़ मिलेगी. And I think this is what you should do. Rather than going to cinema and watching a movie you don't like and eating popcorn, महंगे वाले, you should come support live comedy. Artists like us who are trying to make a difference with art. And I think this is the first time 2 Pakistani comedians in the UK have started joint venture और comedy tour कर रहे हैं stand up का. क्योंकि आप तो बहुत अरसे से यहाँ पे, तो आपने कभी देखा है इससे पहले कौन comedians लोग कर चुके हैं यहाँ पे? I think obviously देसी shows हो सकते हैं, देसी Central does it, या मानी ने किए हैं या आतिफ ने किए हैं, but perhaps not a 2-man show. So Mani Lakat has done the comedy takeaway many years ago. Yeah, Mani has been there. He's an amazing person. I mean, he's amazing. You should have him. Oh, Mani. Mani Lakat is on the list. Mani भाई 3 बार मजाक रात पे गए हैं, तो पता नहीं आपके इस गरीब खाने में आते हैं. गरीब खाने में आते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं टर्की में हूँ आजकल, तो मैं वापस आके we can do. टर्की में? अच्छा टर्की में. तो Mani भाई has honored me with his great guy. with his agreement कि वो आएंगे. But anyways, Salman भाई, thank you so much. Welcome. Thank you so much for like 3 hours of talking, and it was कार भी जाना है लंदन. हाँ, तो मतलब you got kids to take to Bristol tomorrow. Inshallah. And good luck with your ventures. Thank you, bro. Would you like to promote your website and business and Qawwali nights? नहीं, just follow me on Salman Malik Comedian on Instagram. You guys can see all I do.
मैं काफ़ी फेसबुक पे एज आई सेड इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट रिलेटेड, तो यूके में जब मैं डिफरेंट शहर सिटीज शोज के सिलसिले में विजिट करता हूँ, so I put a lot of stories out there for people to see and get an idea कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है. So Plan Your Entertainment is your website जहाँ पर सारे इवेंट्स की डिटेल्स हैं. हमारे कॉमेडी शो की भी प्रमोशन उसी वेबसाइट से हो रही है, तो you can go to planyourentertainment.com and book his Qawwali shows, comedy shows. He is very active every week, trust me. Thank you. I mean, some people ask me कि यार तुम मेडिकल जॉब के साथ ये सारी जगह कैसे मैनेज करते हो, and I ask him कि यार तुम इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप इतनी इवेंट्स कैसे मैनेज करते हो. तो ही इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच सलमान. थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो. थैंक यू फॉर द नाश्ता. इन्होंने बड़ा अच्छा नाश्ता मैंने सुबह चाय बनाई इनके लिए और चाय उबल गई और वो फिर भी अच्छी बन गई थी चाय. और मैंने शामी कबाब भी गर्म किए. आए और हमने बस कर दे अपनी तारीफ. रहने दो. Thank you so much everyone. We'll see you in the next podcast. Please, I will try to be as regular as possible with these kind of podcasts, at least every month or twice a month. And guests like Salman Malik, who we can learn from a lot as performers, as people of entertainment industry, will be coming here. And I think I'll touch on different topics, other professions as well, medical, non-medical, entertainment related or not. So please keep supporting us. Like, subscribe and share.